Assalamu alaikum everyone. This is Ahmed Mustafa here. We'll be waiting for Dr. Arif to join, then we'll start our podcast. आज जो हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स. कोई ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कम इस पे बात की जाती है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलजीज फॉर बीइंग बिट लेट. इट वाज ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज. So we are going to discuss about the problems that students face. मोस्टली जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स उनकी जो इंक्वायरीज होती हैं एंड उसको भी डिस्कस किया जाएगा. जो टीचर्स इस मुल्क के अंदर फेस करते हैं उनकी सैलरी वेजेस एज कम्पेयर टू डिफरेंट डेवलप्ड नेशंस इज़ वेरी लेस. वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती टीचिंग के शोबे को. इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. एंड स्पेशली मोस्ट ऑफ़ यू जो डॉक्टर आरिफ के स्टूडेंट्स हैं दे नो हिम. दे मोस्टली आर फ्राम द CSS स्टूडेंट्स. तो हम उस एस्पेक्ट को भी टच करेंगे. तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, जितने भी लोग ज्वाइन करें, आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं. आई विल ट्राई के 20 के विद थ्रू आउट द पॉडकास्ट क्वेश्चंस को लिया जाए, लेकिन जो रह जाएंगे उनको आखिर में क्वेश्चंस को लिया जाएगा. Just waiting for Sir Arif to come. आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं सर आरिफ से? I have invited Dr. Arif and he'll join us soon. आप लोग तब अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं क्वेश्चन बॉक्स में. Just waiting for a bit. Yes. Yeah. डॉक्टर आरिफ ने ज्वाइन कर लिया. It's just a matter of time. How to overcome fear? Can we post questions there? Right? Yes, you can. We'll try to take it. Hello जी. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. Yes. Yes. Okay, let me just adjust it a little bit. Okay. Sir, am I audible? आपको आवाज आ रही? कुछ थोड़ी सी कम आ रही है, but the volume is full, right? So now can you hear me? Yes, but I don't know why it is slightly less than. Anyhow, it's okay. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Mustafa here with another episode of Inside My Mind, podcast Inside My Mind through the platform of Anon Association. Today we have Dr. Arif Javed with us. He has done PhD in computational linguistics, more than 20 years of experience in teaching. He has taught in various academies throughout the country as well as abroad. He has been teaching critical thinking and English precise and essay to CSS students. He has been a CSS mentor since 1995. We are really glad to have you on our podcast, sir. Thank you very much. Thank you very much. I'm glad to be with you today. First of all, I would like to ask कि आपकी सेहत कैसी है? I got to know कि you were ill. तो एक अर्से पहले अब आपकी तबीयत कैसी है? How are you now? सेहत जो है वो इस एज में जो है वो कोई रेगुलर चीज नहीं होती. आधे घंटे में खराब हो जाती है, आधे घंटे में ठीक हो जाती है. बहरहाल इस वक्त ये है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है. तो इस वक्त ठीक है. Sir, to start off the conversation, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो स्कूलिंग थी, आपकी इनिशियल लाइफ, आपने स्कूलिंग कॉलेज आपने कहाँ से किया and in which major did you graduate from your university? That's a very strange story actually. We
came to Pakistan in 1970 from Kuwait. I was born and raised in Kuwait actually. I was 10 years old when we came to Pakistan. और यहाँ आके तो फिर सियालकोट में थे हम लोग, हमें समझ नहीं थी आती उस वक्त कि कौन से स्कूल में जाना है या हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड किसके मुताबिक है कि नहीं, तो वो 2-3 साल इसी तरह से बस वो गुजर गए. My father was in a very bad health at that time and he passed away after 3 years. Or anyhow, the local school, I would say mohalla school that I was attending at that time, उन्होंने कहा कि मैट्रिक का इम्तिहान दिलवा दे लौटने को. तो वो फिर उस वक्त जो था वो I was just 14, not even 14 when I appeared in matric, लेकिन खैर कर गए. और उसके बाद सबसे जो टीडियस काम था वो था फर्स्ट ईयर में 1974 में जस्ट 14 years of age के ऊपर with the big boys एडजस्ट करना. Anyhow, I did my FA and BA from Islamic College Sialkot. आपने मेजर्स पूछे हैं. I did my FA with statistics, mathematics and economics, but my BA was in stats and economics. And statistics, the most important thing is that statistics got I got inspired by statistics. जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया. चनाचे स्कूलिंग मेरी रेगुलर नहीं है एज सच, काफी हद तक सेल्फ टॉट या होम स्कूलिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि कुवैत में कोई इतने अच्छे स्कूल उस टाइम पे नहीं थे. 1960s की बात कर रहा हूं. आई वाज बोर्न इन 1960. तो कॉलेज में आके पहली दफा मैंने रेगुलर एजुकेशन देखी. एक वाकया मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा. फर्स्ट ईयर में जब मैं पहली दफा जब कॉलेज गए और बेल होनी और बाकायदा रेगुलर क्लास होनी और सारा कुछ और टीचर ने आना क्लास में, तो मैंने साथ वाले लड़के से कहा, मैं कि यार तू तो बड़े लकी हो कि मतलब तुम्हारे सामने टीचर है, उसके साथ उससे कोई भी बात पूछी जा सकती है. तो he stared at me as if I was nuts. ये भी कोई बात है करने वाली टीचर होता है. मैं कि अब इन लोगों को नहीं पता ना कि जिनको टीचर नहीं नसीब हुए वो उनके लिए टीचर सामने मौजूद होना बड़ी चीज है. So I used to ask a lot of questions in the class. So statistics was my favorite subject, but I consider economics also to be equally beneficial. बल्कि आजकल मैं ये कहता हूँ कि 21st century में गालिबन इकोनॉमिक्स हर किसी को पढ़ी होनी चाहिए. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो जिसका नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है. स्टेटिस्टिक्स से जो चीज मैंने सीखी वो ये था कि the beauty of statistics was that you get the data, you have a formula, you apply that and you get the results. इससे एक मेरी मेंटल ट्रेनिंग, ये मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इससे मेरी मेंटल ट्रेनिंग बहुत अर्ली एज पे इस तरह की हो गई सर. थैंक यू. सर, आई वांटेड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क वाज कि टीचिंग को आपने कब आपको ये लगा कि टीचिंग इज द प्रोफेशन यू वांट, कि आप उसको परस्यू करना चाहते हैं? क्योंकि जनरली I was about 22 years of age and I clearly remember कि मैं मेरे कजन्स थे, तो चूंकि ज्यादातर फैमिलीज जो थी वो बाहर थी सारी, तो मामू वगैरह, तो उनके मैं बच्चों की फीस जमा करवाने गया हुआ था. सियालकोट कैंट में एक स्कूल था. And when I looked at the school environment, I liked it very much. It simply fascinated me. The discipline, the uniform and everything going on there. And I liked the environment. तो मैंने अपने आप से पूछा कि can I become a part of this environment? और वहां पे फिर वाइस प्रिंसिपल थी, उनसे बात हुई. तो जब मैंने इंग्लिश में बात की तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा चलें ठीक है. सो एट द एज ऑफ 22 आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ स्कूल एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट क्लास वाज ऑफ जनरल साइंस. और उस वक्त मुझे इंग्लिश टीचिंग का खास कोई नहीं था कि मैंने इंग्लिश टीचर ही बनना है. और वो आज भी याद है मुझे, वो कांपती हुई टांगों के साथ जो है वो क्लास पढ़ानी और सारा कुछ. बहुत अरसे बाद मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई, एक लड़के से मुलाकात हुई. कहने लगा जी मेरी वाइफ एक्चुअली आपकी स्टूडेंट थी उस फर्स्ट क्लास के अंदर. आफ्टर मेनी years, so they still remembered that incident. तो वहां से फिर टीचिंग का एक शौक पैदा हुआ. बाय द वे मेरी एजुकेशन रेगुलर नहीं है, मैंने बीए करके 78 में तो फिर छोड़ दिया था. और उसके बाद जो है वो आई स्टार्टेड एमए इंग्लिश इन 1984. फिर जब पढ़ाया तो फिर मजा आया. फिर उसके बाद एपीएस ज्वाइन किया सियालकोट, और फिर मुझे मजा आया. तो मेरे कुछ सीनियर दोस्त थे जिनमें से एक लेक्चरर थे, एक डॉक्टर थे. उनसे पूछा कि भाई अगर मैं कॉलेज में पढ़ाना चाहूँ तो क्या तरीका होता है. तो पता चला कि जी आप एमए करें, तो उसके साथ बाद में पब्लिशर्स कमीशन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो
इन सारी चीजों से नजर आ रहा होगा कि मेरे चूंकि बचपन यहाँ पर नहीं गुजरा हुआ, सो आई वाज नॉट टू मच फेमिलियर विद प्रोसीजर्स एंड थिंग्स एंड ऑल दैट। तो बहरहाल फिर हमने इंग्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आफ्टर दैट बिकेम अ लेक्चरर। सो दैट वाज द कॉलिंग, जिसे कहेंगे ना कि एक महसूस हुआ कि आई वांट टू बी अ टीचर। Right. Sir, you have done PhD in computational linguistics. Most of us are not familiar with that term. लेकिन मैंने ये पूछना चाहता कि थोड़ा सा वो हमें उस बारे में बताएं, and the latest trends in computational linguistics. How can computational linguistics be used to improve education, and what are the ethical implications of computational linguistics, especially after the introduction of artificial intelligence? These are too many questions. I will forget all of them. What was the first one? What is computational linguistics? ओके, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है बेसिकली मैं आमतौर पे इस तरह से डिफाइन किया करता हूँ साइंटिफिकली, तो जो भी डेफिनेशन है कि आपके व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि आप जो वर्ड्स कॉमनली यूज करते हैं वो बार बार पॉप अप करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये है, इसके पीछे लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बेसिकली काम कर रही है। और स्पेशली सबसे बड़ा जिस मॉड्यूल के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, मेरी पीएचडी जो थी वो सिर्फ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स नहीं, बल्कि इसका जो मेरा थीसिस था दैट वाज द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स ऑफ एंड लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई के ऊपर ज्यादा जो है वो काम किया हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन आजकल हमें चैट जीपीटी की सूरत में नजर आ रही है कि चैट जीपीटी आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करता है। इससे पहले, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले कंप्यूटर्स जो थे वो पहले कोड में बात करेंगे, फिर उसको डीकोड किया जाएंगे टू लैंग्वेज। इट वाज अ लेंथी प्रोसेस। लेकिन अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज में आपके साथ बात कर सकती है। ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, कंप्यूटर्स एंड लिंग्विस्टिक्स। सो क्रिएटिंग एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमंस एंड द मशीन, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है उसका। Thank you. Sir, there was a shortage of. सॉरी, आपका जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो था कि द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लिंग्विस्टिक्स एंड ऑल दैट। एथिकल से यहाँ जो बेसिकली देखें, वी मेड कंप्यूटर्स, वी एनेबल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस इन द ह्यूमन लैंग्वेज। एक तो ये है। अब जहां तक एथिक्स का जहां तक ताल्लुक आ रहा है वो ये है कि जी प्रोबेबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओवरटेकिंग और टेकिंग ओवर और समथिंग लाइक दैट। और ये फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ ये फिर लिंग्विस्टिक्स से निकल जाता है, ये फिर उसके बाकी इस्तेमाल जो है उसके यूजेस और फील्ड्स में जो है ये उसमें आ जाएंगे। लेकिन हमारा जहां तक ताल्लुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर द कॉमन पर्सन टू यूज एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, ये बेसिकली दिस इज वेयर आई कंट्रीब्यूटेड इन। Right. Sir, as per a news article in March 2021, it was reported that 1,200 PhD students in our country were unemployed. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि what is the reason? कि इसके factors क्या हैं इस situation? 1,200 PhD students were unemployed in our country in 2021. Sir, इसके अंदर I think it's a very small number. Yeah. There are far more people. I believe that it is in something like thousands. Yes, sir. When I came back to Pakistan in 2017, somebody added me to a Facebook group, and that group was called Unemployed PhDs. And I remember that at that time it has something like 15,000 plus. It was somewhere 15 to 20,000 people. Yes. Sir, official data is always, they try to keep it the number less, but nonetheless, I would. मेरा क्वेश्चन सर यही था कि इसकी क्या वजूहत हैं। एक मेरा दो सवाल थे कि पहला तो ये कि why are they unemployed? एंड सेकेंडली कि हमने ये देखा गया है मोस्टली कि मोस्ट ऑफ द पीएचडीज जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग की तरफ आते हैं, या इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट फील्ड्स में, या फिर बाय चॉइस दे वांट टू बी इन टीचिंग। अहमद, इसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि सिर्फ पीएचडी हो जाना बजाते खुद ही तो बहुत चीज नहीं है ना। क्वेश्चन इज कि व्हाट आर दे पीएचडी इन। हमारी पीएचडी सबसे ज्यादा जिस फील्ड में निकलती हैं हमारे मुल्क में वो है उर्दू, इस्लामियात, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। अब मुझे खुद कभी इस बात की समझ नहीं आती कि एक एमए हिस्ट्री करके या एमए इस्लामियात करके या एमए उर्दू करके या सॉरी पीएचडी करके, तो इसके बाद या उर्दू के अंदर बेशुमार वो के काम काफी ज्यादा लोगों ने किया हुआ है, बट अल्टीमेटली दे कन्फाइन देमसेल्व्स टू द लिमिटेड स्कोप विद इन पाकिस्तान ओनली। और फिर उसके अंदर भी चूंकि रिसर्च का हमारे यहाँ ट्रेंड
पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है। चनाचे समझा ये जाता है, और ज्यादातर तो पीएचडीज की ही इसलिए जाती हैं। बहुत से लोगों से पूछा कि जी पीएचडी करने के पीछे आपका मोटिव क्या है, तो हमेशा ये सुनाई देता है कि जी हमें 10,000 रुपीज हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हमारा ग्रेड ऊपर चला जाएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। When I started doing ये मेरी दूसरी पीएचडी है, ये जो कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स वाली है, मलेशिया से। पहली जो थी वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में थी। When I started this PhD at the age of 53, तो my family was concerned, my friends were concerned कि यार हेल्थ के लिहाज से will you be able to put in so much effort? एंड मोस्टली ये है कि अब आपने करनी क्या है पीएचडी, जॉब्स तो वो जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अब कौन सी आपको इंक्रीमेंट मिलनी। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज, मुझे बड़ा अफसोस होना ये सुन के कि हम पीएचडी सिर्फ जॉब के लिए करते हैं, और वो भी गालबन सिर्फ एक अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए करते हैं। दिस इज नॉट द स्पिरिट। ये तो उल्टा इसके ऑपोजिट चल रही है चीजें। पीएचडी रिसर्च के लिए है, और फॉरेन में जो रिसर्च पीएचडी जो करते हैं और रिसर्च के जरिए आगे चलते हैं, तो ये फिर अब हमें इस चीज की जरूरत है कि पीएचडी को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एम्प्लॉय ना करे, कोई रिसर्च का भी तो कोई इस मुल्क के अंदर कोई होना चाहिए ना, किसी न किसी का। मुल्क तरक्की कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्रिएट्स न्यू नॉलेज, और अगर रिसर्च नहीं होगी पाकिस्तान में तो फिर अल्टीमेटली पीएचडी इसीलिए की जाएगी। इसलिए मैं नहीं कहता कि लोगों का कसूर है, दोनों साइड से एक जैसी चीज है, सप्लाई एंड डिमांड के साथ। जी, तो सर आपके नजदीक कल्चर ऑफ रिसर्च शुड बी प्रोमोटेड सो दैट, तो यही डिफरेंस है हमारे पीएचडी में, लाइक एक पाकिस्तान के जो पीएचडी करते हैं या एक जो बाहर अब्रॉड भी करते हैं, सो दिस इज द मेन डिफरेंस, इट लाइज इन द रिसर्च एस्पेक्ट। दिस इज वन ऑफ देम। अब देखें ना, पाकिस्तान में रिसर्च की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? हायर एजुकेशन के ऊपर, कि ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं उनको अप्रूव करें और उनको जो है वो चलाएं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप थाउजेंड्स ऑफ पीएचडीज, जो लोग इस वक्त पीएचडीज में रजिस्टर्ड हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो कहीं पे हमें ये चेक नहीं नजर आता कि इन व्हाट फील्ड आर दे गोइंग टू कंट्रीब्यूट। इशू तो ये है ना कि जो पीएचडी जब बंदा करता है, मैं उस फेसबुक ग्रुप में था तो उसके अंदर एक पोस्ट मैंने डाली जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बदनाम हुआ, और फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा ग्रुप अल्टीमेटली। और पोस्ट ये थी कि इवन इफ आफ्टर डूइंग a doctorate in philosophy you are looking for a job, you have not learned anything from PhD. PhD ये नहीं करती, PhD हमें enable करती है कि हम अपने फील्ड खुद पैदा करें। ये नहीं करती कि हम फिर उसके बाद जाके आगे दूसरों के आगे सिर्फ नौकरी ही ढूंढते रहे, जिसका मतलब है हमने PhD से लर्न ही कुछ नहीं किया। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन बाहर अब देखें तो अल्टीमेटली यही है, PhD बंदा खुद अपना जहान पैदा करता है। वो ये नहीं कि वो जाके फिर दरवाजे खटखटाएगा कि मुझे जॉब दें आप, नहीं, वो रिसर्च स्टार्ट करेगा। एंड मोस्टली इंडिविजुअल अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उनको फाइनेंस किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। सर थोड़ी सी वॉइस का इशू आ रहा है आपकी, वीडियो एंड वॉइस। इंटरनेट कनेक्शन का मसला है या कि? जी सर, नाउ इट्स बेटर। बीच में थोड़ी सी आपकी वॉइस अब्रप्टली वो, राइट सर, I got your point, sir. Moving on, sir. You have been a CSS mentor since 1995. So काफी अर्सा आपने बहुत बारीक बीनी से तमाम सिस्टम को आपने देखा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि throughout these years, have you observed any changes in the structure of CSS examination और जो स्टूडेंट्स की evolving approach? यही तो ग्रेटनेस है FPSC के, that it's always evolving. It's always adjusting to the changing demands of the times. और यही फर्क है इसमें और यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज तो एक प्रोग्राम लेके बैठे हुए बस वो कई डेकेड्स गुजर जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विस की डिमांड्स चूंकि चेंज होती जाती हैं मुसलसल बाहर की दुनिया में भी। और सिविल सर्विस में सिर्फ ये है कि कंट्री के अंदर कोई बंद बैठ के ऑफिस के अंदर ही काम नहीं करना होता। इंटरनेशनल जितनी भी कोलैबोरेशंस हैं उसको अल्टीमेटली एनैक्ट किसने करना है? ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होती है। चनाचे दे हैव टू अपडेट देमसेल्व्स कॉन्टिन्यूअसली, and FPSC is live to these demands. This is something good about it. So they keep on evolving, they keep on changing policies, and I've seen a lot of changes, always better changes, always improving. Sir, at the same time I wanted to ask that students की जो approach है towards that exam, क्या वो change हुई है जो उनकी preparations method होता है? दूसरा है कि CSS is considered
बहुत एक टफ एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं हर साल। बार स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि ओनली 1.8% स्टूडेंट्स पास। तो व्हाई इज दैट सो? इतनी क्या वजह है कि स्टूडेंट कॉम्पिटेंट नहीं हमें है? जी जी। थोड़ा सा सॉरी टू कट यू शॉर्ट, इसके लिए हमें जाना पड़ता है थोड़ा सा बैकग्राउंड में। थोड़ा सा मैं इसमें कभी भी ये नहीं समझूंगा कि स्टूडेंट का कसूर है। हमने उनको दिया ही क्या है एजुकेशन के अंदर, क्या सिखाया उनको? थ्रू आउट देयर 16 ईयर्स हम उनको रट्टे की मशीनें बना देते हैं, एंड द बेटर अ मशीन, क्रैमिंग मशीन अ स्टूडेंट इज, द हायर ग्रेड्स ही गेट्स। तो अब ऐसे बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब सीएसएस में हमेशा कहता हूं कि ये एक एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन है, तो एम्प्लॉयर को तो लेटेस्ट स्किल्स चाहिए ना, और वो स्किल्स चनाचे ये जो आपको जो फेलियर इतनी बड़ी नजर आ रही है सिविल सर्विस के अंदर, ये गैप है हमारी एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान, जो हमें बाकी सारे फील्ड्स में भी नजर आ रहा है। इंजीनियर्स फॉर एग्जांपल, व्हाई आर दे अनएम्प्लॉयड? दूसरी तरफ इंडस्ट्री को देखें तो वो बार बार कहते हैं जी हमारे पास इतनी वैकेंसीज खाली हैं, हंड्रेड्स के हिसाब से, बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। प्रैक्टिकल्स नहीं होते, प्रैक्टिकल्स आउटडेटेड मशीनरी के ऊपर होते हैं। आजकल मशीनरी जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है वो डिफरेंट है। चनाचे हायर एजुकेशन ने सिरे से उन स्किल्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहलाती हैं। तो सिविल सर्विस इज नॉट एनीथिंग डिफरेंट, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है ना। तो आई डोंट थिंक कि ये स्टूडेंट्स को ब्लेम करने की कोई बात है कि जी स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। नहीं, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, और सिस्टम इज फेलिंग दी स्टूडेंट्स। यानी हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम फेल कर रहा है, नहीं। ये बेचारे, मुझे तरस आता है सारी ये नौजवान जो हमारे हैं, इनके लिए हमने किया क्या है? माई जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, पीपल ऑफ माई जनरेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बट अल्टीमेटली फिर वही बात कि पॉलिसी मेकर्स शायद कहीं और बैठे हुए हैं मेरी जनरेशन की, लेकिन वो पॉलिसी मेकर्स, क्या उनके कान पे कभी जू रेंगती है कि जनाब लाखों लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और एजुकेटेड लोग हैं, इनके लिए हमने मुल्क में क्या क्रिएट किया है? नथिंग। चनाची ये जो गैप नजर आ रहा है ना, इसमें किसी तरह भी हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स की तरफ से कोई एफर्ट की कमी नजर आ रही है। नहीं, हमने उनको दिया क्या है? स्टूडेंट्स के पास है कुछ नहीं बेचारों के पास, ना उनके पास राइटिंग स्किल्स हैं, ना उनके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, ना उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं। ये सारी चीजें तो वो है जो, मतलब बाज़ औक़ात क्लास के अंदर, मुझे आज भी मैं आर्गुमेंटेशन समझा रहा था, तो मुझे बाज़ औक़ात शर्म आती है चीज पढ़ाते हुए कि यार ये वो चीज थी जो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को बाहर के मुल्कों में आती है, और हमें इनको सीएसएस लेवल पे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स को चल के तो ये चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ाता हूं, तो ये वो चीज है जो क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 लेवल पे जो थी वो इनकलकेट कर दी जाती है। सो वेयर इज द होल सिस्टम देन? मेरा क्वेश्चन तो ये है ना कि सिस्टम ने अल्टीमेटली किया क्या है जो आप इनको ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी आप लोग किसी काम के नहीं है? नहीं, हमारे जो हम किसी काम के नहीं है। वी वर टू सेल्फिश and we were too much after our politics, our policies and our own gains, and we never looked at कि ये पूरी पौध जो आगे करोड़ों के हिसाब से, जिसके ऊपर हम बड़ा नाज करते हैं कि जी 60% हमारे पास यूथ बल्ज है, इनके लिए किया क्या हमने? एक हायर एजुकेशन सिस्टम, जबरदस्त ये काम था 2002-2003 में उस वक्त की गवर्नमेंट का। मैं बाहर था, और बाहर हमें पता चलता है कि हाँ भाई अब पाकिस्तान की डिग्रीज की भी कोई वैल्यू हो गई, और जब तक हायर एजुकेशन चला है इट वाज वेरी वेरी यूजफुल, और वाकई पाकिस्तान की एजुकेशन ऊपर गई। व्हाट डिड वी डू टू दैट? वी प्रोविंशियलाइज्ड इट। ये क्या बात हुई? ये चीज तो प्रोविंशियलाइज नहीं होती, एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो प्रोविंशियलाइज नहीं हो सकती, लेकिन हमने कर दी। चनाचे यहां देखें अहमद, जो चीज आप मिस कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन असल में बीच में, यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा टीचिंग का भी। टीचर की सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है? वेयर इज द मेरिट? बस एक सेंटेंस सिर्फ बोलूंगा इसके ऊपर। जब टीचर्स भर्ती किए जाएंगे पॉलिटिकल बेसिस पे, तो नेशन इसी तरह की आएगी, और नेशन का कसूर नहीं है, नेशन का हरगिज कसूर नहीं है इसके अंदर। ये कहना कि जी नहीं दे आर टू बी ब्लेम्ड, आई डोंट थिंक दे आर टू बी ब्लेम्ड एट ऑल। इन बेचारों की तो हिम्मत है कि ये हजारों की तादाद में फिर भी ये करने की कोशिश करते हैं सीएसएस को। राइट सर, मैं इसी बात को आगे लेके चलना चाहूंगा। जिस तरह आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर का एक फ्लॉ है कि हमारे पास वो जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होना चाहिए वो नहीं। इस सूरत हाल के अंदर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं अपने आप को बेटर इक्विप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड्स? व्हाट कैन दे डू? जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ स्टूडेंट्स को कि बेटा अब आंखें खोल लो जरा, लुक अराउंड यू। एक बहुत जबरदस्त, मेरा हाल मार्क ट्वेन की सेइंग है
एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस। आज सुबह भी कोई मेरे साथ बात कर रहा था कि 1980s में 90s के जो लोग आज नजर आते हैं वो कहीं फार मोर टैलेंटेड हैं, इसलिए कि उस वक्त मुल्क के हालात इतने मुश्किल थे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एडवर्सिटी जो थी वो हर किसी के लिए पाई जाती थी। एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस, प्रॉस्पेरिटी कंसील्स इट। तो एडवर्सिटी जो है, अब जरूरत है कि देखिए दो सूरतें हैं ना, या तो एडवर्सिटी से बंदा मार खा के बैठ जाएगा कि मेरे पास तो चांसेस ही कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही कोई नहीं है, तो बस बंदा चुप करके बैठ जाएगा। दूसरा यह है कि जरा आंखें खोल के देखो आसपास, बेशुमार इस मुल्क के ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है, जिन्होंने खुद डेवलप की है कि भाई नौकरी मुझे कहीं से मिलनी नहीं है, मैंने अपनी नौकरी खुद पैदा करनी है। आप अपना जहान पैदा कर अगर जिंदों में है। वी नीड टू अपडेट आवर स्किल्स। हमें जो कुछ यूनिवर्सिटी ने पकड़ा दिया, अब और कितना टाइम लगेगा ये जानने में, ये रियलाइज करने में कि दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड नथिंग एल्स। तो फिर जरा आंखें खोलो ना, जरा आसपास देखो जरा। और सिर्फ हम एक पाकिस्तान में नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बेशुमार जो नौजवान हैं वो इसी तरह की सिचुएशन का शिकार है। व्हाट डू? दे लुक अराउंड, दे गो फॉर द न्यू स्किल्स। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, आओ नजर आगे बढ़ो। तुम ऐसे डर रहे हो जैसे को आगे रोबोट खड़ा है, वो टर्मिनेटर 3 का, और उसने आप आगे गन पकड़ी हुई है और अब उसने पकड़ के आपको सबको जो है वो मार के रख देना। देयर इज एन ऑन ऑफ स्विच फॉर दैट टर्मिनेटर 3। देयर इज समबडी हु इज प्रोग्रामिंग दैट। आगे आओ, थोड़ा सा आसपास देखो अपने, और ये चीजें मेरे ख्याल में आज के जमाने में करनी और ज्यादा आसान हो गई हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एट योर फिंगर टिप्स। सिर्फ ये चीज हमें, हमारे बच्चों को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि nobody is going to help us now. We have to help ourselves. Stop looking towards the others. Your survival, मैं हमेशा CSS के स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, your survival, your success is in your hands. ये समझो कि नहीं दूसरा मुझे, मैं जाके इम्तिहान दूंगा, दूसरा मुझे नौकरी देगा, नहीं, तुम अपनी नौकरी पैदा करो जरा। और ये बहुत से लोगों को समझ भी आ गई। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा। Way back in something like 1994, 93, I think, while I was a lecturer in English, तो हमारे एक स्टूडेंट्स में से सियालकोट में, मैं किसी ने मुझसे पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्या एरियाज हैं जो आपको पसंद है। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी का जिक्र किया, दैट आई लाइक टू स्टडी अदर देन माय ओन सब्जेक्ट्स, आई लाइक टू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी। तो बड़ा हैरान हुआ, सर ये क्या होती है। तो मैंने उसको बताया कि इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसकी आंखों में ऐसे जो चमक सी आ गई ना कि सर ये भी कुछ साइंस है। ये ऑफ कोर्स साइंस है। बहुत अरसा बाद, समथिंग लाइक 2006 में एक दफा एक रेडियो प्रोग्राम था FM पे, तो उसके दरमियान मैं लाइव गया, तो सबसे पहली कॉल जो थी वो US से आई। और जब कॉल्स आनी शुरू हुई तो सबसे पहली कॉल, I am Dr. Bilal speaking from US. Dr. Bilal. Sir, do you remember you told me when I was doing BA the word anthropology? It caught my attention so much. I was so inspired by it that I have done PhD in anthropology from USA. And right now I'm working in the archaeology department in one of the museums here. I was so glad. अब ये स्पार्क होता है ना कि अब बंदा वो देखता है कि यार ये फील्ड ऐसा है जिसके अंदर मैं जो है वो कर सकता हूँ। तो आज का जमाना है मैकाट्रॉनिक्स का, इसका कंप्यूटराइजेशन का, और ऑटोमेशन का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फिर हमें जरूरत है कि इन चीजों की तरफ हमारे नौजवान जो है वो ध्यान दें, और हर फील्ड में। मतलब हम इंग्लिश के होने के बावजूद, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, ऑलवेज। आई डिड माई फर्स्ट course in computers in COBOL language and Fortran language in 1979 after doing BA। और ये वो जमाना है जब PC भी नहीं था होता। लाहौर में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, ये वापडा हाउस की बेसमेंट में हबीब बैंक का, जिसके ऊपर हम पंचिंग कार्ड्स, आजकल जो कंप्यूटर साइंस के म्यूजियम्स में पाए जाते हैं, हम उसके ऊपर जो था वो प्रोग्राम लिखा करते थे और उसके अंदर जो था वो चलते थे। So it was a very strange thing that a person like me with English language and literature background is interested in technology. This is what we need. टेक्नोलॉजी से अब डरने के बजाय आपके हाथ में है टेक्नोलॉजी। मैं सबसे बड़ी चीज ये कहूंगा कि आपके हाथ में है ये मोबाइल फोन जो आपके पास है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स।
आज मेरे ये ख्यालात आप लोगों तक पहुंच रहे हैं ओनली थ्रू दिस। एंड दिस वाज सिंपली इम्पॉसिबल। लोगों के साथ बात करना, स्कॉलर्स के साथ गुफ्तगू करनी, सिंपली हम सारी जिंदगी हम तरसते रहे हैं इन चीजों के लिए कि हमें किसी से बात करने का मौका मिले। लेकिन आज नॉम चॉम्स्की को हम ईमेल लिखते हैं, सर आई वांट टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद यू, ही सेड टेल मी द टाइम, और वो आपके साथ 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आराम से लाइव जूम के अंदर, चॉम्स्की जितना बड़ा स्कॉलर आपको टाइम देगा। और इस तरह के लोग दूसरे, बिल गेट्स इज नोन फॉर दिस, वो रोजाना 2 घंटे टाइम देता है पूरी दुनिया में लोगों को कि जो भी उसके साथ बात करना चाहता है। वी कुड नेवर इमेजिन दीज थिंग्स। तो ये फिर अब हमें ना थोड़ा सा निकलना पड़ेगा कि मेरे चचा जान मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे या प्रोफेसर पैदा करेंगे या गवर्नमेंट पैदा करेगी। स्टॉप लुकिंग एट द गवर्नमेंट प्लीज, यू आर टू मेनी, you have to do something for yourself. Thank you. जिस तरह आपने जिक्र किया, मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमें जब स्टूडेंट्स व्हेन दे हैव टू मेक देयर करियर चॉइसेस, दे आर 18 और 19, जब एक स्टूडेंट एफएससी से निकलता है, डू यू थिंक कि उसके पास वो ज़हनी सलाहियत है उस टाइम के ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू, एंड डू यू थिंक करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है? क्योंकि यहाँ पे कमी आ गई काउंसलिंग, जी जी यही मसला है ना, यहाँ काउंसलिंग की कमी आ गई है ना, कि काउंसलिंग को हम ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई एक्स्ट्रा खर्चा है, एंड दीज पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड देख लें, काउंसलर को वैसे समझते हैं कि जैसे ये एक्स्ट्रा खर्चा है जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। बगैर काउंसलिंग के आप अपने कंट्री की लेबर फोर्स को किस तरह से मॉडर्न लाइंस पे ट्रेन कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो आए होते हैं, एडमिशन ऑफिसर्स जो आए होते हैं, उनके साथ जरा बात करके देखें किस तरह से वो आपकी गुफ्तगू से, आपके वर्ड से, आपकी वोकैबुलरी से, आपके क्वेश्चन से आपकी पर्सनैलिटी को जज करके 5 मिनट में आपके सामने रख देते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम सूट करेगा। तो ये लोग कोई किसी और प्लेनेट से तो नहीं आए। सो काउंसलिंग जो थी वो बेसिकली एक ऐसा फॉरगॉटन कॉज है जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स अब सफर कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के बैठे हुए हैं जिनके बारे में उनसे कहते हैं सर मेरे साथ इसका दोबारा जिक्र ना करें। सो उनका ट्रेंड कुछ और है, जमाने का ट्रेंड कुछ और है, डिग्रीज कुछ और चाहिए, और जहाँ लोग किसी और तरफ रहे हैं। सर, टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन समझा जाता है हमारे माशरे में, और हम जब बचपन से हमारे अंदर ये चीज इंस्टिल की गई थी कि टीचर इज द वन हु मेक लॉयर्स, डॉक्टर्स, जितने भी एक हम लोग कहते हैं एक आर्मी पर्सन, एक पीएफ ऑफिसर, जो सिविल सर्वेंट, इन तमाम चीजों की जो जड़ है बुनियादी तौर पे एक अच्छा टीचर इन पूरी एक माशरे को बनाता है। लेकिन सर ओवर द ईयर जैसे ही हमने देखा है कि इफ यू आस्क स्टूडेंट व्हाट दे वांट टू बिकम, टीचिंग इज देयर लीस्ट प्रायोरिटी। तो ऐसा क्यों है? मतलब हम लोग अगर देखते हैं तो कोई भी हमें ये नहीं कहता कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आपके नजदीक इसकी क्या वजह? मैं शायद इसका कोई खास अच्छा जवाब ना दे सकूं, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। मुझे सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया कि भाई आप फलां चीज कर सकते हैं, आपके पास फलां बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, ये है वो है। बट आई सेड नो, आई वांट टू बी अ टीचर। एंड अल्टीमेटली फैमिली ने फिर आफ्टर दे स्टार्टेड गिविंग अप ऑन मी, एंड दे रियलाइज कि मेरे बड़े भाई हमेशा सुनाया करते हैं कि जब वो किसी जमाने में पता नहीं कोई टीचर था, तो उसको जब वो गांव वापस आया तो बुजुर्गों ने पूछा कि क्या करते हो, तो कहते कि मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में। उन्होंने पंजाबी में कहा कि तू जरा मुंडिया नूं पढ़ाते रहना है कि कुछ काम भी करना है, कि तुमने सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही रहना है या कि काम भी करना है। यानी उनके नजदीक ये काम नहीं है एज सच। तो टीचिंग जो है वो लोग इसलिए नहीं करना चाहते कि उनके नजदीक ये कोई काम नहीं है। तो ये आप लोगों को बना नहीं सकते। ये जो टीचर्स हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में कुछ 70% टीचर्स वो हैं जो जस्ट कुछ और करने को नहीं था और हम इस फील्ड में आ गए बाय चॉइस। अगर आप पूछें लोगों से तो मेरा नहीं ख्याल कि हार्डली को 5% भी आपको पाकिस्तान में नहीं नजर आएंगे हु आर देयर बाय चॉइस। ये मसला हुआ है जिस वजह से आपको डिसइंटरेस्टेड टीचर्स नजर आते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो थी उसने और बेड़ा गर्क किया इसका, और इसकी नोबिलिटी जो थी वो सिरे से टोटली जो थी वो खत्म हो गई। सो आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। सर, जिस तरह टुडे हमारा जो मेन टॉपिक था वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऑफ द टीचर्स इन टुडेज एरा, सर उसकी तरफ मैं बढ़ते हुए मेरा ये सवाल है कि जिस तरह आपको लगता है जो हमारा करिकुलम है और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑफ
ऑफ एग्जामिनेशन और सारा कुछ, कि एक कांस्टेंट रेस एंड स्ट्रगल है, हम टीचर्स पे प्रेशर है कि बच्चे अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाएं, और वालिदैन भी स्टूडेंट को यही फोर्स करते हैं कि यू हैव टू टेक टॉप ग्रेड्स होने चाहिए आपके। सो डू यू थिंक ये कल्चर इज इट हमें फायदा दे रहा है हमारे मुल्क को? इसको रोकने की जरूरत है क्या? आप देखिए इस थोड़ा पे कहते हैं? सा, हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। थोड़ी सी जो जो मसला हुआ है ना हमारे यहाँ एजुकेशन के साथ, ये एक इसके अंदर रेजिमेंटेशन बहुत ज्यादा आ गई है। टीचर्स के ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर्स हैं पेपर वर्क के, और रफ्ता रफ्ता होते होते जैसे जैसे वो पेपर वर्क बढ़ता गया, मैंने देखा कि टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए टाइम कम होता गया। और ओवर द लास्ट 40 years दैट आई हैव सीन एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सिनेरियो, मैंने ये देखा कि जैसे जैसे पेपर वर्क बढ़ता गया, लोगों ने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। यार इतना टाइम नहीं है कि हम इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ा भी सकें, चनाचे नोट्स जो है फोटोकॉपी करा के स्टूडेंट को पकड़ा देते हैं। अब क्या हुआ है कि फॉर्म्स तो वो सारा दिन, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं उनके अंदर मैंने देखा कि पेपर वर्क इतना ज्यादा टीचर को करना पड़ता है, इतना ज्यादा करना पड़ता है कि उसके अंदर पढ़ाना तो टोटली गायब हो जाता है। चनाचे वो एक पूरा कल्चर एक ऐसा बन गया। और ये क्यों हुआ? ये सब एक सिंगल रीजन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो ही कमर्शलाइज हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी जिंदगी चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ गुजरी है, कि अंग्रेजों ने बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हमारा, बड़े कैलकुलेशन के साथ हमारी समर वेकेशन डिजाइन की हुई थी, जून जुलाई अगस्त। प्राइवेट स्कूल्स में ये भी देखने को आया कि लोगों ने कहना कि जी आपने तो 3-3 महीने की फीस ली हुई है, बुलाएं बच्चों को, लाएं बच्चों को, समर कैंप्स लगाएं, चलें। अब वो मौसम जून का था नहीं पढ़ाई वाला, अब 14 अगस्त 15 अगस्त को जो है वो स्कूल खुल रहे हैं। ये मॉनसून है, और इस मॉनसून में इस सिरे से पढ़ाई किसी किस्म की हो सकती ही नहीं। आप हमारे सारे कंक्रीट वाले बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर आप बच्चों को नहीं डाल सकते। चनाचे नतीजा क्या नजर आता है? हेल्थ हमें बड़ी खराब नजर आती है बच्चों की। वो उतने हेल्दी बच्चे आज के नहीं हैं। वजह ये कि स्कूल, उसके बाद सब्जेक्ट्स हम इस तरह पढ़ाते गए, हम अभी भी हम महसूस करते हैं कि ये शायद 10 सब्जेक्ट काफी नहीं है स्कूल में, इसके अंदर 4 और डालो, इसके ऊपर 2 ये भी डालो, इसको शाम को ये भी करो, इसको वो भी करो। अल्टीमेटली सारा दिन उसका दिमाग जो है, अब वो सिर्फ एक हमने डब्बा बना दिया जिसके अंदर चीजों को डालते रहें और दूसरी तरफ से निकालते रहें। उसके अंदर कहां से इंटेलेक्ट आएगी और क्यों आएगी? सबसे बड़ी चीज, अगर ग्रेड्स के, रेजिमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई है और ग्रेड्स की क्रेज। अब मेरा मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इतने ग्रेड्स लेके उसके बाद भी क्या बनता क्या है? मेरिट पे जाके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके आप निकलते किस चीज के साथ हैं? एक ऐसी डिग्री के साथ जिसने अल्टीमेटली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो वेयर इज ऑल दिस रेस लीडिंग अस टू? या तो इस रेस के साथ होता ना कि कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही होती, कोई एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती, तो चले ठीक है आप कर सकते थे। देखिए इन चीजों के लिए जो था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ना, ये ऊपर जो बैठे होते हैं सोचने, ये उनके सोचने का काम था। लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अहमद, आप जरा मुझे जवाब दीजिएगा, क्या इस मुल्क में किसी को फिक्र है कि इस मुल्क के नौजवानों का क्या बन रहा है या बच्चों का क्या बन रहा है? नेम मी वन गुड पर्सन फॉर दैट। व्हाट आर आई वी डोंट। ऑफर्ड? हमने एक पॉलिटिशियन को लगा देना होता है वो वजीर तालीम। मैं किसी एक गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा, जनरल। और वो पॉलिटिशियन जो है वो एजुकेशन के बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि टेक्नोक्रेट्स का कल्चर नहीं कायम हो सका। हम पॉलिटिकल जो है, और अगर टेक्नोक्रेट कहीं चाहिए भी तो वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है। इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में लार्जेस्ट नंबर जो कैजुअलिटीज है वो एजुकेशन के अंदर है। सबसे ज्यादा सफर इसमें 2 डिपार्टमेंट्स ने किया, आई वुड से, एक हेल्थ ने और एक एजुकेशन ने, इस सारे द एब्सेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी ने। राइट सर, हमारे करंट करिकुलम में और एजुकेशनल अप्रोचेस में हम क्रिएटिविटी की कोई जगह नजर नहीं आती। अब व्हाट डू यू थिंक आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड ऐसा कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कल्चर ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन किया जा सके? अहमद, फिर वही बात सप्लाई एंड डिमांड वाली आएगी सारी। इकोनॉमिक्स का यही फायदा होता है इन चीजों को पढ़ने का, कि डिजायर्स एंड विशेस अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि क्रिएटिविटी की डिमांड एक्चुअली है कहाँ पे। अब जॉब्स भी जो थी वो भी मेरिट पे जब आना शुरू हो गया कि जी अगर आपके इतने % मार्क्स हैं तो ये सारा कुछ जो कुछ है ये इसका होगा। क्रिएटिविटी एक होते
क्रिएटिविटी एक कल्चर होता है बेसिकली। क्या वो कल्चर सिरे से मौजूद रहा है? मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं तो कोई, या दोस्त के यहाँ जाएं तो उनके कोई बच्चों के बच्चे जो हैं, वो 3 साल का बच्चा है, वो अगर निकलेगा, इधर आओ अंकल को आके ना तो अपनी वो 1 2 सुनाओ, नर्सरी राइम सुनाओ, और वो बच्चा टट 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 शुरू हो जाएगा। इज दिस आवर स्टैंडर्ड कि ये एजुकेशन होती है? और इस तरीके से करते करते हमें सिर्फ से खुद पता ही नहीं एजुकेशन का कि एजुकेशन है क्या, और ना ही हमें किसी ने पता लगने दिया है, और मेरे ख्याल में पता लगने देना भी नहीं है। जो हालात जो नजर आ रहे हैं कि अगर ये एजुकेशन पढ़ जाती है ना जब, तो ये फिर हाइट्स अचीव करते हैं। दे आर सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। ये मेरा एक बिलीफ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहता हूँ। और ये चीज मैं बाहर के मुल्कों में काम करके देखा है। No doubt we are one of the most intelligent nation in the world. Pakistani people are among the most intelligent and the most efficient and high achievers in the world. इसलिए शायद इस कौम को इतना दबा के रखना इतना जरूरी समझा जाता है, वरना they can achieve any heights. मैं यूएई में देखा, मैंने दूसरे मुल्कों में देखा कि हर जगह टॉप की जो पोजीशन जो डिसीजन मेकिंग की है, जहां पे पॉलिसी मेकिंग है, वहां पे पाकिस्तानी नजर आता है। जो जर्रा जहां था वहीं आफ्ताब था। दे आर ग्रेट पीपल, बट इनको फिर यही तरीका, मुझे तो ये नजर आता है कि पूरी साजिश है जिसके तहत इनकी अगर एजुकेशन का बड़ा गर्क कर दें तो ये कौम इसके पास रहेगा कुछ नहीं। एंड अल्टीमेटली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। चाहे वो क्रिएटिविटी है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग है, चाहे आप जो कुछ मर्जी कर लें, तो ये कल्चर कहां से पैदा होगा, ये मसला है। राइट सर, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा है थ्रू आउट द ईयर्स पोलराइजेशन हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है। हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, हम लोग बहसियत कौम, हम लोग उस तरह से बर्दाश्त नहीं करते। टॉलरेंस हमारे अंदर बहुत कम हो गई है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल और व्हाट, या पॉलिटिकल हो गए, पॉलिटिकल एज वेल एंड सोशल टॉलरेंस इन जनरल वी सी दैट देयर इज अ डिक्लाइन। इसकी एग्जांपल मैं एजुकेशन के हवाले से देना चाहूंगा। देयर वाज अ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर खालिद हमीद in Bahawalpur. He was killed by one of his students, murdered by one of his students because he thought कि टीचर ने कुछ एक ऐसी बात की जो कि अन-इस्लामिक है। ठीक है, मतलब this is the extent of our क्या पोलराइजेशन। सो आपके नजदीक हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसएग्रीमेंट के लिए जगह हो? एजुकेटर्स या टीचर्स का क्या रोल हो सकता है इसके अंदर? मेरे ख्याल में एजुकेटर से ज्यादा शायद यहाँ पे उलमा इकराम हमारे जो रिलीजियस हैं, गालिबन उनका रोल इसमें ज्यादा आता है। बिकॉज टीचर से कहीं ज्यादा उलमा इकराम की सुनी जाती है, और दे आर कंसिडर्ड इन अ बेटर पोजीशन टू बी फॉलोड रादर देन एनी। क्योंकि वो तो कहते हैं जी ये केमिस्ट्री टीचर है, ये मैथ्स टीचर है, इसको क्या पता हो इन चीजों का और सारा कुछ। अहमद, हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने मुआशरे की तरह ओवरऑल जरा बात देखिएगा, हमने एकेडमिक ट्रेनिंग जो थी, ये मैं एज पेरेंट्स बात कर रहा हूँ, एकेडमिक ट्रेनिंग बच्चे की जो है वो स्कूल के हवाले कर दी, और उसकी एथिकल ट्रेनिंग हमने समझा कि कारी साहब जो आते हैं वो करेंगे, और मौलवी साहब जिनके यहाँ जो जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये एथिकल और मॉरल ट्रेनिंग हम करेंगे। हमने एज पेरेंट्स बच्चों की मॉरल ट्रेनिंग का सिरे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वही पूरी नहीं की। और ये मैं हमेशा जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है लोगों से कि एज पेरेंट्स, मैं लाहौर में किसी दोस्त के साथ जब ड्राइव कर रहे हैं और वो जब लेफ्ट साइड से ओवरटेक करता है और उनके बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तेरा ध्यान रखना, तुम्हारा बेटा, उसको पता ही नहीं कि राइट साइड से ओवरटेक करते हैं गाड़ी। वो लर्न कर रहा है कि जी अब्बा जी भी जो है वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा। जब हम बच्चे को खुद कह रहे हैं कि जी जाओ जाके उनको बताओ कि अब्बू घर पे नहीं है, तो हम फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर के लोग हमारे बच्चों की मॉरल ट्रेनिंग करेंगे? हमने मॉरल ट्रेनिंग, हमारा मसला क्या हुआ है कि हमें पेरेंटिंग ही नहीं आई सिरे से। हम समझे कि जी बच्चे पैदा कर लिए हैं तो इसके बाद हमें ऑटोमेटिकली हमें पेरेंटिंग भी आ गई है। लेकिन पेरेंटिंग जो है इट्स स्किल, इट्स एन आर्ट। और जब मैं बाहर से होके आया और जब मैं लोगों को कहता हूँ ना कि यार पेरेंटिंग के ऊपर एक कोर्स कर लो, तो लोगों को गुस्सा चढ़ता है। अब हम पेरेंट बनने के लिए, मुझे बाप बनने के लिए बाप के तौर पे कैसे पेश आना है, मुझे कोर्स करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली यस, सो दैट यू कुड बी अ गुड फादर। खुद अगर हम
गालियां देंगे। मुझे याद है एक दफा स्कूल में एक वाले साहब जो थे वो शिकायत लेके आए। अहमद को टाइम की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता जा रहा। There is no restriction of time on my part. Right. वो शिकायत लेके आए कि ये मेरा बच्चा जो है ये आखिर आप स्कूल में इसको क्या सिखाते हैं, ये गालियां बहुत ज्यादा देता है। तो खैर नाम शाम पूछा सारा कुछ, तो वो बड़ा गुस्सा उनको चढ़ा हुआ, तो गालियां देना शुरू हो गए बच्चे को, फलाना फलाना फलाना। फिर मुझे समझ आ गई, अच्छा तो मैं क्या, बच्चा तो कहता है कि घर पे जो है वो वालिद साहब गालियां देते हैं, मैंने अपने पास से लगाया और नहीं उसकी ऐसी की तैसी, उसकी 2-3 गालियां फिर उसको दे गया। बच्चा सामने नहीं था। मैं क्या, अब मेरे साथ आप बैठे हुए, आपके सामने टीचर के सामने आप गालियां देने से बाज नहीं आए, तो क्या आप घर में बाज आते होंगे? और फिर आप समझते हैं कि हम जो है वो उसको यहाँ पे हम ट्रेन कर रहे हैं गालियां देने के अंदर। तो हमें सही बात है कि हम एक वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपनी एज पेरेंट्स, वो नहीं पूरी ना कर रहे हैं और ना ही शायद कर सकेंगे, इसलिए कि हम इसको मानने को तैयार ही नहीं है सिरे से। लोग मेरी मुखालफत करते हैं इस बात से कि जी आप जो है वो समझते हैं कि बच्चे ठीक है और हम गलत हैं। आई थिंक कि हम गलत हैं। वाकई हमने पेरेंटिंग की वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चे को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और अल्लाह ताला ने जब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना, तो हम फिर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह भी हैं एज पेरेंट्स के हमने उनकी उन ग्राउंड्स पे तैयार पेरेंटिंग की, ट्रेनिंग की या नहीं की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मेंटल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर और मुआशरे में स्टिल स्टिग्मा समझा जाता है इस पे बात करना। और टीचर्स जितना इन पे वर्कलोड होता है और इनके पास कम वसाइल के अंदर इनको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, तो देयर मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड अलॉट। कुछ स्टैटिस्टिक्स में पेश करना चाहूंगा कि एवरेज सैलरी एक टीचर की पाकिस्तान में अराउंड 25,000 रुपीज है। 2019 जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 60% जो टीचर्स हैं दे लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब इन्फ्लेशन टू 2023 में 40% से ज्यादा हो चुकी है। तो आपके ख्याल से एक टीचर के लिए कितना मुश्किल है ऐसे हालात में सरवाइव करना, और क्या हुकूमत को इंसेंटिव इंक्रीज करने चाहिए? लेकिन इन तमाम सूरत हाल में फर्स्ट ऑफ ऑल की उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने मुश्किल हालात हैं। एंड लोग इनकरेज कैसे होंगे कि वो टीचर जी ये बड़ा इस शोबे में? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन आप इसको एक, मैं देख रहा हूँ कि एक आउटसाइडर के तौर पे किस फिनोमिनन को देख रहे हैं। मैं एज इनसाइडर टीचर्स की साइड से बात करते वक्त सिर्फ उसके ऊपर मेंटल हेल्थ की स्ट्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं है। टीचिंग इटसेल्फ इज नॉट एन इजी टास्क, इट्स नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। और वो टीचर से पूछे ना कि क्लासरूम के अंदर से जब आप होके आते हैं और आप क्लासरूम के अंदर बेशुमार प्रेशर जो है वो काम कर रहे हैं। नंबर एक सोशल प्रेशर है कि आप ह्यूमन बींग्स के साथ जो है वो कर रहे हैं। फिर अपनी जॉब का प्रेशर है कि आपने सर्टेन चीजें जो है डिलीवर करनी है। नंबर 3 रेजिस्टेंस है, लर्निंग के ऊपर जो एक नेचुरल ह्यूमन रेजिस्टेंस है। और इन सारे फैक्टर्स के साथ टीचर एट द सेम टाइम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फाइट कर रहा होता है। ये इनसाइड द क्लासरूम की स्टोरी है जिस साइकी में उस वक्त वो चल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसके साथ सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल फैक्टर्स सारे जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, विच नोबडी इज रेडी टू रियली टेक केयर ऑफ, या इवन कंसिडर। टेक केयर ऑफ क्या, इवन कंसिडर करने को तैयार नहीं है। और ख्याल यही है कि ये मशीन है, इसके अंदर ये ऑर्डर दे दिया है आपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना है। एवरी सिचुएशन इज नेवर रिटन इन द बुक टीचिंग के बारे में। दीज आर ह्यूमन बीइंग्स दैट वी आर डीलिंग विद। सो टीचर के पास क्या वो आजादी मौजूद है कि वो जिस तरीके से वहां पे उसको होना चाहिए, जिस तरह से डील किया जा सकता है उस बच्चे को, वो कर सकता है? नहीं कर सकता। सो असल स्ट्रेस जो टीचर्स के ऊपर है वो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन स्ट्रेसेस में हमारे टीचर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। नॉट ओनली दिस, उसके बाद अपना प्रेशर आ जाता है, हम और प्रेशर उसके ऊपर एक्सटर्नली बिल्ड करते जा रहे हैं। मिनिस्ट्री की ये डिमांड है कि ये सारा कुछ करना है, डिपार्टमेंट की ये डिमांड है, ईडीओ की ये डिमांड है, डीओ की ये डिमांड, और इस तरीके से हम डिफरेंट उसके ऊपर जो है। मैंने देखा इसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर कि उसमें तो फंक्शंस ही इतने ज्यादा हैं, डेज ही इतने ज्यादा हैं। रोजाना तकरीबन हफ्ते के अंदर कम से कम 3 जो फंक्शन है, 4 फंक्शन जो लाजमी है। तो इसमें पढ़ाई का मौका कहाँ मिलेगा? एंड स्टिल द टीचर इज सपोज्ड टू गिव द रिजल्ट्स आल्सो। कहां
से रिजल्ट दे, या उसको वो आउटपुट जो है वो कहां से देगा. सो इट ऑल रिजल्ट्स इन व्हाट अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके इसके अंदर जो है. सो दे आर सफरिंग वेरी वेरी बैडली. आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट पिन पॉइंट किया है. और उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है. वो कहीं भी मैंने देखा है कि किसी भी तरह से नंबर वन सिंपैथेटिक नहीं है, और नंबर टू कंसिडरेट नहीं है, और समझा यही जाता है कि यू मस्ट बी एबल टू डू all the 11 things that we are expecting you to do, plus the 24 things which it is your responsibility to do as a teacher. Can a person take care of all these 35 factors? It's humanly impossible. जो बाहर के मुल्कों में मैंने देखा वो थोड़ा सा फर्क ये था कि पेपर वर्क, बाज़ औक़ात टीचिंग असिस्टेंट्स थे, बाज़ औक़ात जो था वो पेपर वर्क के लिए एक दिन जो था वो खास मखसूस था, और जिस दिन टीचिंग हो रही है हम उसको टीचिंग डे कहा करते थे. व्हेन इट्स अ टीचिंग डे you are only teaching and you are not going into any exams or any marking or anything like that. होमवर्क के डेज हैं और असाइनमेंट्स के डेज थे, और इस तरीके से ये हुआ कि टीचर को वो उस टाइम टेबल में आ जाए. उस दिन वो मेंटली उसको पता है कि मैंने आज सिर्फ ये चीजें करनी है, और वो चीजें ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा बेहतर तौर पर रिजल्ट्स आते हैं. सो मेंटल हेल्थ इश्यूज ये हैं कि ये इट इज लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम. हमारे यहाँ जो जॉब जो लोग टीचर्स कर रहे हैं, वीडियो गेम में यहाँ से भी अटैक आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, नीचे से ग्राउंड भी खिसक रही है, ऊपर से आग भी आ रही है, आपके हाथ आपके वेपन्स भी खत्म हो रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट. हाउ डू दे डू इट? आई सिंपली आई डोंट अंडरस्टैंड रियली. रिटायरमेंट के बाद ये 60 प्लस आके थोड़ा सा मैं महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा ना शुक्र है, नाउ आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू एंड आई वोंट हैव टू डू व्हाट आई एम टोल्ड टू डू. बिकॉज टीचर बेसिकली एक असल टीचर्स वो होते हैं जो जिनको इंडिपेंडेंस दी जाती है काम करने की, रिजल्ट्स उसमें आते हैं. मुझे जो अपनी मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ काम कर रहा हूँ, और इनके साथ मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं टिक भी इसलिए गया हूँ शायद कि यहाँ पे लीस्ट बॉसिंग है. गाड़ी से निकल के सीधे क्लासरूम में जाते हैं, और क्लासरूम से सीधे जाके वापस गाड़ी में बैठते हैं और घर आ जाते हैं. कोई उसके अंदर, और उनको रिपोर्ट वगैरह सारी मिल जाएगी, हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट सारी मिल जाएगी. लेकिन वो जो एक्स्ट्रा था ना प्रेशर कि नहीं आज आप ये भी बताएं कि अटेंडेंस कितनी है, अटेंडेंस में से कितने लोग अटेंटिव भी थे, उनमें से कितने लोगों का मूड भी ठीक था, कितने लोगों का जो है ये भी था ये भी था. नो पेपर वर्क, नथिंग लाइक दैट. सो पीपल आर, दैट इज व्हाई टीचर्स आर सो प्रोडक्टिव हियर. और इतने डिफिकल्ट एरिया में सीएसएस के दे आर प्रोड्यूसिंग सच टॉप रिजल्ट्स. राइट सर. सर जिस तरह आपने जिक्र किया कि कमर्शलाइजेशन की वजह से टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उनको अब रिजल्ट्स देने हैं, उनके अंदर लाइक दे डोंट हैव द टाइम कि आप मोरल वैल्यूज जो हमारी हैं, बाकी चीजें उनकी बिल्कुल एक तरबियत कर सकें स्टूडेंट की, प्रिपेयर हिम. कोई गुंजाइश नहीं है. नोबडी हैज द टाइम फॉर दैट. और सर इसके अलावा उसके लिए हम मोटिवेशनल स्पीकर बुला लेंगे कोई 2 हफ्ते बाद, और वो आके मोटिवेट करके पब्लिक को चला जाएगा, और फिर हम दोबारा उनको उसी क्लासेस में ले जाएंगे जहां हम खूब डिमोटिवेट होंगे. बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर. ये तो हम लोग जिक्र कर रहे हैं जिस तरह हमारी जो सिटीज हैं, जो हमारी अर्बन सिटीज हैं, उसके अंदर अब हमारे जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट इनटू द स्कूल्स येट. मतलब अकॉर्डिंग हमने जो सर्वे देखा है इसके अंदर 2018 की रिपोर्ट है पाकिस्तान एजुकेशन फंड की कि 60% स्कूल पाकिस्तान के अंदर उनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है. मतलब 35% स्कूल के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, मतलब बेसिक फैसिलिटीज नहीं. देन ऐसी सूरत हाल के अंदर टीचर के लिए कितना मुश्किल है स्टूडेंट्स को पढ़ाना इन तमाम फैसिलिटी की गैर मौजूदगी में. एंड हाउ डू देखिए ये चीजें जी, इन चीजों का ना होना बड़ी सिंपल सी रीजन है. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इज एजुकेशन अ प्रायोरिटी इन आवर कंट्री? नो सर, आई डोंट थिंक. नहीं. तो बस फिर बाकी इसमें पूछने वाला तो रह ही कुछ नहीं जाता. जब एक चीज आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है, आप उसको एक बस क्या कहें, नाम की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको 2%, 1%, 3% जो है वो बजट दे रहे हैं कि यार अब ये पैसे यहाँ भी जाया करने ही पड़ेंगे, तो फिर वो उनको फिर जाया के तरीके में मद में ही लिया जाएगा. अब वही बात ना फिर कि हु इज इंटरेस्टेड इन दिस. तो दैट इज व्हाई ये डिके जो है, मुझे इसका कहीं पे वो जो एक होता है ना, वो एक एंड होता है किसी चीज का, वो अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव द आंसर फॉर दैट, अनफॉर्चुनेटली.
सर अब अगर हम देखें तरक्की याफ्ता ममालिक का, हम देखें अगर फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम या मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, उसके अंदर जो स्टूडेंट होता है उसके इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर गौर किया जाता है कि उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए इज बेटर फिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर द रेशो, द ओवर क्राउडेडनेस ऑफ द क्लासेस, तकरीबन 50-60 स्टूडेंट्स हैं, देयर इज ओनली वन टीचर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर टीचर किस तरह से हर, क्या आपको लगता है कि हर बच्चे को प्रॉपर अटेंशन दे सकता है जो वो नॉट डिजर्व करता है, उसको देनी चाहिए? और इसके नॉट अंदर हाउ कैन द सिचुएशन बी इम्प्रूव? देखिए जी, जो आइडियल रेशियो है स्टूडेंट टीचर दैट इज 1:25, 25:1। ये और ये भी ऑप्टिमल है, मतलब द लेसर द बेटर, यानी 20:1 जो है वो ये आम रेशियो है। अब जिन कंट्रीज की आप एग्जांपल दे रहे हैं वहां पे आपको क्लास के अंदर नजर भी इतने ही आते हैं। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में बाद पढ़ाते वक्त ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये क्लास खाली नहीं पड़ी हुई, तो कहते नहीं हम आए इतने। रियली कैन दे अफोर्ड टू बी ओनली दिस मेनी, दीज मेनी? यस, दे डू इट। दे विल नॉट डू दिस थिंग कि जी एडमिशन आया तो 100 स्टूडेंट्स आ गए हैं तो चलो 2 सेक्शन बना लो। नहीं, उनका अगर लिमिट है तो उन्होंने 25 की तो उन्होंने 4 सेक्शंस कर लेने हैं। इदारा अपना खर्चा बढ़ा ले, लेकिन स्टूडेंट का वो जो है, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो किसी तरह से मुतासर नहीं। अदरवाइज क्या होगा, टीचर की प्रोडक्टिविटी लो होगी। सिंपल, इसकी रेशियो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है कि वो उसके ऊपर वो किया जा सके। बाकी वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो आपने जिक्र किया था, व्हाट मोटिव डू दे हैव, पेरेंट्स के पास मोटिव क्या है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें? व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव फ्रॉम दैट? साफ नजर आ रहा है कि यही बच्चा अगर ना जाएगा स्कूल तो शायद ज्यादा बेहतर कहीं पे आराम से एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेगा और अपनी रोजी रोटी का बेहतर बंदोबस्त कर जाएगा, बनिस्बत इसके कई डिग्रियां लेके ये बेरोजगार बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां पे रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस तो है ही नहीं, सिर्फ से रेट्रोग्रेशन है कि हम बार बार नीचे की तरफ और वापस की तरफ जा रहे हैं। वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड एट ऑल। बिल्कुल सर, राइट सर। थोड़ा सा मैं टीचिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में पूछना चाहूंगा कि सर आफ्टर कोविड-19 हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा है इन आवर कंट्री एज वेल कि ऑनलाइन टीचिंग का रिवाज ज्यादा हो गया। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की इनकॉर्पोरेशन एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी सी बढ़ी है। बट स्टिल मोस्ट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेजेस का अगर मैं जिक्र करूं तो टीचर्स वही आउटडेटेड मेथड यूज करते हैं फॉर टीचिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये एक वजह बनती है कि स्टूडेंट और टीचर का जो के दरमियान फासले इंक्रीज हो जाते हैं और टीचर्स को नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आपने 2-3 चीजें पूछी हैं। पहली बात तो ये कि कोविड-19 का मुझे जो ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये नजर आया कि आजकल मुझे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस हासिल कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि हमने ये कोर्स किया, ये कोर्स किया। ये कॉन्शियसनेस आज से 3 साल पहले नहीं थी लोगों में, कि ऑनलाइन जब आए, व्हेन दे स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल विद ऑनलाइन, तो उनको फिर उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में से ही इंस्टीट्यूशन में ही एडमिशन लेना है, देन दे सॉ दैट द वर्ल्ड इज ओपन टू देम और एडमिशन लें, पेमेंट करें। सो आई एम सीइंग नाउ मोर पीपल विद फॉरेन क्वालिफिकेशंस राइट नाउ इन पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। तो एक तो ये पॉजिटिव चीज जो थी हुई। लेकिन फिर वही मसला कि एज एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, वी आर एवर्स टू चेंज। और हमें और मशरिक में हमेशा यही मसला है कि ये टेक्नोलॉजी से हमेशा अफ्रेड रहा है। तो हमारे जो हैं वो टीचर्स जो थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक अजाब समझा और उन्होंने ये महसूस किया कि ये और स्यापा पड़ गया हमें। हालांकि ये स्यापा नहीं था, ये ज्यादा बेटर एवेन्यूज थे। मेरे साथ ही मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि मेरे जो कोलीग्स हैं उनमें से जो लोग तो टेक्नोलॉजी पे स्विच ओवर कर गए, एंड दे वर वेरी फ्यू, हार्डली 10%, तो वो तो सर्वाइव कर गए कोविड-19 में। बट 90% ऑफ देम कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू लर्न हाउ टू यूज द जूम। दे वर नॉट रेडी टू हाउ टू यूज, यार ये क्या बात हुई, मैं बैठ के प्लास्टिक के साथ ये कैमरे के साथ बातें कर रहा हूँ। यार इमेजिन कि दूसरी तरफ तुम्हारे सामने जब क्लास में होते तो तुम्हारे पास 40-50 लोग होते हैं ना। इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने 2000 लोग पूरी दुनिया में तुम्हें सुन रहे हैं। नहीं जी, मुझे क्या फायदा अगर मैं उनको नहीं देख सकता। ये व्हेन विल यू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट? सुमाना यार ये 21st सेंचुरी है, ये वो वाला 1980 नहीं है जब हमने पढ़ाना शुरू किया था। और नहीं, हमसे ये नहीं होता। चनाचे आई सॉ पीपल रेजिस्टेंट टू टेक्नोलॉजी,
और कौमें कभी भी, कुदरत जो है वो कभी भी ऐसी कौमों को माफ नहीं करती कि जो टेक्नोलॉजी को या नई चीजों को शन करेंगे और तर्ज कोहन पे अड़ना और आईने नो से डरना। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में एग्जैक्टली हमारे साथ यही हो रहा है कि हमारे टीचर्स इसको प्रॉपरली यूज ना कर सके, जिस वजह से रिजल्ट्स बहुत खराब आए। बाकी कंट्रीज बेशुमार इसी कोविड-19 की वजह से हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हाइब्रिड मॉडल पे, वो ऑनलाइन भी चला रहे हैं। हम खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं अटैच हूँ, CSS की एकेडमी जो है, वो प्योरली हाइब्रिड मॉडल पे है। ऑन कैंपस क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, और कोविड-19 के बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई। राइट सर, हमने डिस्कस किया कि टीचर्स को क्या क्या मसाइल का सामना है विद इन दिस सिस्टम एंड हाउ कैन दे इम्प्रूव। अब मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा, स्टूडेंट्स के भी काफी सारे मसाइल होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज, एंड आई वुड लाइक टू टॉक अ बिट अबाउट इट। कि हमने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर देयर इज एब्सोल्यूट पावर टीचर के पास, एंड अब हमने बहुत सारे केसेस पर्सनल ग्रजेस के, हैरेसमेंट के, बुलिंग के ये देखने में आए। सो व्हाट डू यू थिंक, कोई ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम जज कर सकते हैं कि टीचर की क्या एवेल्युएशन है, या कोई इस तरह का केस जिसके अंदर किसी बच्चे के पर्सनल ग्रज की वजह से पास नहीं किया जा रहा है या मार्क्स नहीं दिए जा रहे? सो हाउ कैन वी टैकल दैट? और स्टूडेंट की जो मेंटल हेल्थ उससे अफेक्ट होती है, देयर आर केसेस के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके ये जिम्मेदार कौन है? कि ये फैब्रिकेटेड है अगर या आप गौर जी? अगर आप गौर से देखें तो एजुकेशन भी तो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है ना। इसके पीछे जो जो चीज नजर आ रही है वो बेसिकली वो सोशल फॉल्ट लाइन्स है। अब एक मेरा टॉपिक था पिछले दिनों ऐसे का, फीमेल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्सपोजेस द सोशल फॉल्ट लाइन्स। सो ये जो हरासमेंट के केसेस आपने जो दिखाए हैं सारे के सारे, ये बेसिकली सोशल फॉल्ट लाइन्स शो कर रहे हैं ना, कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जो है वो ये समझना कि इसके अंदर, और एक तरफ हम मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं और जो लॉज हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पास किए हैं, और दूसरी तरफ सोसाइटी जो है वो मजीद वो जा रही है अपने उस पैट्रियार्कल माइंडसेट के अंदर, जिसके अंदर विमेन को यूं समझा जाएगा कि जैसे ऑब्जेक्टिफिकेशन है। एक लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो अगर विमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है, और दूसरी तरफ लॉ जब उनको अलाउ करेगा, विमेन को सर्टेन एम्पावरमेंट देगा, तो फिर इस तरह के क्लैशेस आने बिल्कुल नेचुरल चीज है। बिकॉज दोनों तरफ से इंटरप्रिटेशन जो है, पाबंदी की और आजादी की, दोनों तरफ से ही इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो रही है। मसला तो ये था ना कि ये कौमें, बाकी कौमें इस मसलों को कैसे सॉल्व करती हैं। बाकी कौमें इन चीजों को सॉल्व करती हैं थ्रू द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम के अंदर आपने कोई चीज कंट्री के अंदर करनी है, करिकुलम के अंदर शामिल कर दें, 5 7 10 साल में आपको उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। हम करिकुलम में क्या लेके बैठे हुए हैं? सो हम इवन डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपनी उसके करिकुलम के अंदर नहीं शामिल कर सके। फिर हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी क्यों नहीं, इसलिए कि डेमोक्रेसी हमारे करिकुलम में कहीं है ही नहीं। हम करिकुलम में हिस्ट्री को और पास्ट को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करके बैठे हुए हैं कि करंट जमाने का तो है ही कुछ नहीं उसके अंदर, या कम से कम है अगर शामिल किया गया सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए, तो फिर उसको रोल आउट जब किया गया, उसको पढ़ाने का जब तरीका, जो मेथड जो था, वो पॉलिटिकल अपॉइंटेड जो टीचर्स हैं वो अल्टीमेटली उसका क्या हशर करेंगे। चनाचे वो रिजल्ट्स नहीं आ सके। चनाचे अहमद, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं थ्रू द एजुकेशन। और ये जो प्रेशर है हरासमेंट का और ये सारा कुछ, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो टीचर ने हरास किया है स्टूडेंट को, या किसी कपड़े वाली दुकान पे किसी शख्स ने कैमरा लगाया हुआ था और फीमेल खवातीन की जो थे वो फिल्म बनाया करता था, या वो किसी रेस्टोरेंट में छुप छुप के जो है वो फीमेल जो है बना रहे, ये दे आर ऑल रिफ्लेक्टिव ऑफ द सेम माइंडसेट। एक ही माइंडसेट जो है वो सारी जगहों पे नजर आता है। सिर्फ फर्क ये है कि हमें एजुकेशन का नजर आता है जी ये नोबल प्रोफेशन है, इसलिए लोग तो पीछे सेम है सारे ना। तो वो जब हमारी हुई नहीं, सिरे से मॉरल ट्रेनिंग ही नहीं हुई, तो फिर हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे उनसे, किसी मॉरल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन कैसे? राइट सर, आई वुड आस्क अ क्वेश्चन, उसके बाद ऑडियंस के इधर से आ रहा है कि हमारे क्वेश्चंस कब लिए जाएंगे, उसके बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे। ओके सर, what are the potential effects of frequent humiliation and mental torture inflicted by teachers on students' mental health, self-confidence and academic performance? स्कूल्स किस तरह से कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, जिस तरह में जी मैं इस चीज में नो डाउट अबाउट दैट।
एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड सपोर्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है? क्या इसकी वजह ये है कि टीचर्स खुद बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, बिकॉज आपने कहा कमर्शलाइजेशन है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो दे नीड समवन, वो एक होता है ना हायरार्की के, दे नीड टू अपना जो एंगर है उसको वेंट आउट करना है, मे बी दैट्स द केस। आप सो डू यू थिंक इट इज काफी काफी ज्यादा जो है वो मसलन अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की और लेक्चरर के दरमियान अगर कोई किसी दिन हीटेड डिस्कशन हुई है, तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द क्लास नाउ, बिकॉज लेक्चरर का माइंड जो है, देखिए टीचर को बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा कि इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता था कि आर यू इन द राइट माइंडसेट टू गो टू क्लास राइट नाउ। ये लोग आम एक दूसरे से पूछा करते थे। बंदे ने अगर बता दिया ना कि नो आई एम नॉट इन द राइट माइंडसेट, तो वाकई फिर ओके कुछ और कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो कर ली जाएगी, किसी और को भेज दिया जाएगा। सो यू हैव टू बी इन द राइट माइंडसेट टू डिलीवर। हमारे यहाँ इस चीज का कोई किसी किस्म की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, चनाचे वो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है और बड़ा शदीद अंडर प्रेशर है, बट स्टिल ही हैज टू गो टू द क्लास। अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, जैसे आपने हायरार्की ऑफ एंगर कहा, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द क्लास एज वेल। स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है कि आज ये सर कहीं से झिड़कियां खा के आए, आपस में भी मजाक बनता है और ये सारा कुछ चलता है, बट वी हैव टू रियलाइज दैट आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और जब तक हम इस कल्चर को ही सिरे से यही रखेंगे कि भाई इन एनी केस यू हैव टू गो टू द क्लासरूम। हमारे तो इवन जो ट्रैफिक है, जब आप ट्रैफिक में से गुजर के आते हैं और उसके फौरन बाद आप क्लास के अंदर चले जाएं, तो अभी तक दिमाग जो है वो घुमा होता है ट्रैफिक में से। तो वो टीचिंग का कैसे वो माइंडसेट बनेगा जिसके अंदर बंदा प्रोडक्टिवली कर सके, डिलीवर कर सके। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स, जब हम क्लास में कभी बात में स्ट्रेंथ की कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि माई स्ट्रेंथ इज फोकस। और ये फोकस शायद जिंदगी में एडवर्सिटीज ने सिखाया कि आप जिस हालात में से मर्जी गुजर के आप गए हुए हैं, क्लास के अंदर गए हैं, क्लास में जाके आपने तो महसूस करना है कि जी बस ये वो सब कुछ बाहर का था। तो यू कैन, आई कैन फोकस ऑन माई वर्क अंडर एनी कंडीशंस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये गालबन टीचर्स को हमारे यहाँ डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, हमारे पास इसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। राइट सर, आई वुड लाइक टू एंटरटेन सम ऑडियंस के जो क्वेश्चंस हैं अगर कोई हैं, ओके, देन आई विल मूव ऑन। के मेरे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे? जी मैं देख रहा हूँ, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं सर, हाउ टू हैंडल सीएसएस प्रेपरेशंस अलोंग आवर जॉब्स? ओह दैट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग आई वुड से। और उसकी वजह यह है कि इसके लिए प्योरली यू हैव टू बी अ वेरी गुड टाइम मैनेजर। इसका सिर्फ एक इसका हल है, दैट यू नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ एक इसका, बाकी आप कहें ना कि और बाकी चीजें। और टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट जब हम कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक सा टारगेट दे दूंगा कि भाई आपकी 8 घंटे की जॉब थी, 2 घंटे ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद आप आके तो ऑफिस के बाद फ्रेश होके बैठ के तो 6 घंटे पढ़ाई भी करें। नो, आई विल नॉट से दैट, बिकॉज आई नो दैट ऑफिस या जो भी आपका जॉब है, अल्टीमेटली वो हमें निचोड़ के घर भेजता है। दैट इज द पार्ट, वो ही उनका काम है हमें निचोड़ना। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ क्विकली कैन यू, आपको जिन टेक्निक को लर्न करने की जरूरत है कि आप कितनी तेजी से रिवाइव कर सकते हैं अपनी मेंटल एनर्जी और अपनी फिजिकल एनर्जी। थके हुए जाहिर पढ़ाई नहीं हो सकती। यू हैव टू लर्न कि आपकी फिजिकल डिमांड्स क्या है। आपकी फिजिकल डिमांड क्या स्लीप है? स्लीप इज प्रोबेबली, और वो भी पावर नैप जो है, probably the best revival technique होती है कि if you can come back and have a quick nap for about 30 minutes और उसके बाद आप फ्रेश हो जाए। लेकिन ये फिर आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, अपनी हर किसी फिजिक की अपनी अपनी टाइप है। बाद लोग जब सोएं तो उनसे फिर 4-5 घंटे से पहले उठा नहीं जाता। सो यू विल हैव टू लर्न योर बॉडी केमिस्ट्री एज वेल एज द ब्रेन केमिस्ट्री, कि मेरा ब्रेन किस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है, किस वक्त मेरा ब्रेन रात को, सुबह। थके हुए जबरदस्ती आप ब्रेन को नहीं चला सकते। ये आपको अपना एक बड़ा जबरदस्त सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, बड़ा रियलिस्टिक किस्म का। और इसमें मैं आपको सही बताऊं, इसमें मशवरा दूसरा कोई नहीं दे सकता। इट इज योर कंडीशन, इट इज योर सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाई यू आर द बेस्ट जज। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि अपने माइंड को स्टडी करने की कोशिश करें, ब्रेन केमिस्ट्री देखें कि मेरा ब्रेन फ्रेश कैसे होता है। देखिए, मैंने भी आज 6 आवर्स क्लासेस ली हुई हैं
और आज पहली क्लास 11 o'clock स्टार्ट हुई थी, 11:30, और उससे पहले मैं सुबह 8 बजे से काम कर रहा हूँ. This means that I'm working right now continuously. This is my 14th hour that I'm constantly working. But why am I fresh? Although I'm tired, but why am I fresh? Because I know कि exactly मेरा mind जो है उसको demand क्या है. उसको demand है food की, उसको demand है certain ये उसकी elements की. तो ये सारी चीजें मैं साथ साथ पूरा करता रहूंगा. अब अगर हमने साथ डाइटिंग भी करनी है, और आई हैव फॉर एग्जांपल टुडे ईटन, क्योंकि बहुत लंबा दिन था, आई हैव ईटन 5 times टुडे, जस्ट बिकॉज आई नो कि ग्लूकोज होगा तो ब्रेन फ्रेश रहेगा. तो हम ये नहीं कर सकते वरना ब्रेन फैग आ जाता है. तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी केमिस्ट्री, ब्रेन की भी और अपनी बॉडी की भी, कि मुझे किन चीजों से, इसमें वजन बढ़ता है, इसमें बंदा मोटा होता है, वो एक बात की चीजें हैं. इसमें साथ साथ इन चीजों को नहीं कंसिडर किया जा सकता. राइट सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. उनमें से सर, हाउ टू रिड्यूस सोशल मीडिया यूजेज टू एनहांस फोकस? फॉलो लेस पीपल. इंस्टाग्राम की सबसे खूबसूरत बात ही मुझे ये लगी, और इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे हूं और फेसबुक पे नहीं हूं और स्नैपचैट पे नहीं हूं, कि इंस्टाग्राम में मैं जिन लोगों को फॉलो करूंगा सिर्फ उन्हीं की चीजें आएंगी बस. एंड इफ आई फॉलो 20 पीपल तो फिर 20 लोगों की ही आएंगी. बाकी रह गया व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप का फिर एक बड़ा सादा सा बड़ा अच्छा मेथड जो मुझे नजर आया है आजकल, विच आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग नाउ, वो है उसका म्यूट करना टोटल उसको. और आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि मॉर्निंग 10 till 11 एक घंटा मैंने, आई एम नॉट गोइंग टू टच व्हाट्सएप एट ऑल. या लोग 2 घंटे रख सकते हैं. फिर ये है कि ऑफ मोड चले जाना, प्लेन मोड में चले जाना. प्लेन मोड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, कि जब मैंने पढ़ना है, जब मैंने अपने काम पे कंसंट्रेट करना है, प्लेन मोड इज द बेस्ट. इट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब मी एट ऑल. इस वक्त मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताऊं, पहली दफा मैंने अपने फोन के ऊपर इस वक्त सिम ऑफ की हुई है. मुझे पता था कि इसके दौरान, क्योंकि पहले एक दफा मैं लाइव कर रहा था, तो उसके दौरान कॉल्स जो थी वो कॉन्स्टेंटली देवर डिस्टर्बिंग मी. सो टेक्नोलॉजी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस काफी सारे हैं, जिसको आप अपने दिल के ऊपर जरा वो पत्थर रखना पड़ता है कि अच्छा भाई इतनी देर मैंने व्हाट्सएप नहीं हैंडल करना. आप प्लेन मोड में चले जाएं. आपने अगर सोशल मीडिया, बाकी आप फॉलोइंग कम करें. एंड इफ यू आर फॉलोइंग 500 पीपल, तो फिर कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका है. सर, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से कुछ सवाल आते हैं. Are uniforms and discipline at schools analogous to prisons? और दूसरा ये था, can it be inferred that not having regular education has helped you with better critical analysis? I think so. Sometimes I proudly say that I am maybe one of the reasons why I could preserve my mind was that I did not go to school. फिर मुझे मार्क ट्वेन की वो लाइन याद आती है, डोंट लेट स्कूल इंटरफेयर विद योर एजुकेशन. सर, इन वर्ल्ड ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, इस ऐसे में प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस क्या होगा? चाइना. अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज और एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन means the way you use language. Language तो वो है ना जो कॉमन सबके पास है, और आप उस लैंग्वेज को यूज कैसे करेंगे, that is the expression. How to manage toxic environment and toxic people in your surroundings? Toxic people are they're always there. There is no way of getting around them, because mostly they are in the family, I'm sorry to say. लेकिन if they are around you, तो फिर क्योंकि आजकल के नौजवानों में मैंने देखा है कि they consider अपने फैमिली मेंबर्स को sometimes they consider toxic. सोशल मीडिया ने हमें लेबल करना बहुत सिखा दिया चीजों को. You can't avoid them. What you can learn, however, is to how to absorb toxicity without getting affected by it personally. अगले की आदत है, मैं क्या करूं? If you stop considering their words as having any meaning, तो मेरी एज में मेरे ख्याल है लोगों को शायद इसीलिए जरा थोड़े से पुरसकून हो जाते हैं कि उन्होंने ये सीख लिया होता है कि अगले की वर्ड्स, अगले की बातों को सुनना है, आवाज आ रही है, ठीक है,
लेकिन इसका मीनिंग कोई नहीं है, या अगर वो कोई गलत बात कर भी रहे हैं तो डोंट मीन इट एक्चुअली. इफ यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, देयर विल बी पीस around you. If you're getting too much, if you're reacting too much to others' words, so then their words are definitely going to irritate you. So ये एक बर्दाश्त कैसे इंसान के अंदर आती है, this is, I would say, a Herculean effort, but ultimately life में हमें सीखनी पड़ती. Right. Sir, regarding CSS, काफी questions है कि how to manage stress regarding CSS और self means से तैयारी की जा सकती है या academy जाना जरूरी है, and how to improve retention for CSS exams. 2-3 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन क्या था कि स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जाए, अपनी रिटेंशन पावर. स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली, मैं पिछले दिन एक वीडियो बना रहा था इसके अंदर, और स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली टाइम मैनेजमेंट ही है. मैंने वीडियो बनाया था जब मुझे समझ आया कि यार ये इसको मैंने स्ट्रेस क्यों कहा है, ये तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है. सारा मसला ही, मसलन हम स्ट्रेस में है कि जी हम लेट हो गए और शदीद किस्म के अंडर स्ट्रेस है, तो लेट कौन हुआ है? मैं हुआ हूं. मेरी वो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली, एक चीज आपने देखी होगी कि जो शख्स एक दफा लेट है वो एक्चुअली हमेशा ही लेट होता है, इसलिए कि उनकी हैबिट्स इस तरह की हैं. मुझे किसी ने कहा कि जी मैं 9:30 पे पहुंचूंगा, तो वो 9:40 पे 9:50 पे चल के आए हैं, तो अगले दिन भी वो 9:30 पे नहीं आ सकते. उन्होंने हमेशा 9:40 9:50, इसलिए कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अब अगर वो सुन रहे हैं इस वक्त तो उनको बुरा लग रहा होगा और अभी मुझे मैसेजेस शुरू हो जाने हैं कि जनाब नहीं, हम कल तो 9:30 पे पहुंचे थे. तो होता यह है कि हम जितना टाइम, मतलब मैंने अगर आपके पास 8 बजे पहुंचता तो 8 बजे तो हम घर से निकलते हैं. तो ये हमारी वो सोशल हैबिट्स हैं छोटी छोटी जो अब आके हमारी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है. स्ट्रेस एक्चुअली बेसिकली इट इज टाइम मैनेजमेंट. और दूसरा क्वेश्चन आपका था रिटेंशन पावर किस तरह इंक्रीज की जाए. रिटेंशन पावर तो ब्रेन को जरा समझने की जरूरत होती है. रिटेंशन एक्चुअली लैक ऑफ फोकस है. आपका माइंड, जरा अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो आपका माइंड एक टाइम पे बेशुमार चैनल्स में काम कर रहा होता है. इट इज लिसनिंग टू समथिंग, इट इज सेइंग समथिंग, इट इज योर, आपका दिमाग कहीं और पे है, मेमोरी कोई और चल रही है, और एक्चुअली फिक्र आपको किसी और चीज की लगी हुई है. ये ह्यूमन ब्रेन एक ही टाइम पे ये सारी चीजें जो है वो कर रहा होता है. और रिटेंशन के लिए हमें जरूरत है कि ये सारे 5 चैनल्स 6 चैनल सारे के सारे एक ही चीज के ऊपर लगे हों, फिर चीज अपने आप रिटेन रह जाती है. आपको किसी की जो गलत बात जो थी, जो उसने आपको क्रिटिसाइज किया था, वो आपको क्यों याद रह गई? बिकॉज उसने एकदम से आपके सारे के सारे चैनल्स को एंगेज कर लिया और आपने बाकी सारी तरफ से ध्यान हटा के क्या कहा तुमने, एंड यू स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड आफ्टर years and years and years. वो रिटेन कैसे हो गया? दिस इज द रीजन कि हम सोशल मीडिया ने और काफी सारी चीजों ने हमारे माइंड को बहुत ज्यादा चैनल्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है. हमें उन सारे चैनल्स को इकट्ठा जो है वो करने की जरूरत होती है. ये 2 क्वेश्चन थे, तीसरा भी हो गया. जी सर, बाकी एक क्वेश्चन ये था कि सेल्फ स्टडी से सीएसएस किया जा सकता है या आपको एकेडमी? सेल्फ स्टडी इज बेटर. सेल्फ स्टडी एंड स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन इज मच बेटर. ऑल्दो मैं एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हूँ, लेकिन फिर पता है मसला क्या है कि सेल्फ स्टडी वही कर सकता है जो कर सकता है. आज भी क्लास में हमारी यही बात हो रही थी. बाज लोग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि सर जब तक टीचर हमारे सामने खड़ा ना हो हमें समझ ही नहीं आती बात की. बाज लोग साफ बताते हैं कि सर मुझे स्क्रीन से कोई समझ नहीं आती. बाज लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन से हमें बड़ी सही समझ आती है. तो ये आप यूनिवर्सल लॉ रूल को इसके लिए नहीं बना सकते. Some people are good at self study. I am, for example, good at self study. मुझे टीचर बड़ा मतलब बड़ी मुझे खौफ सी होती है, और उसकी वजह ये कि मेरी अपनी स्पीड है एक लर्न करने की. बात चीजें तेजी से करूंगा, बात स्लो करूंगा. When somebody is teaching me, तो I will have to go to according to him or her. लेकिन फिर ये कि हर बंदा इस तरह नहीं होता. उसके बाद ये कि बाज लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमारी ही एकेडमी फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर लोग ऑनलाइन प्रोग्राम में है, ओनली दोज पीपल आर गुड एट दैट जो बाय चॉइस उसके अंदर आए. बाज जो मजबूरन आए हुए हैं कि जी चूंकि हम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरे सिटी जाना, उनको ऑनलाइन जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती. बट देन अगेन दे आर प्रोड्यूसिंग इक्वली गुड रिजल्ट्स.
सो ये प्योरली आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है वो आपको सूट करता है और कौन सा नहीं. Right. So there is a question. Why is that everyone wants to do the CSS, but very few want to build a company or create jobs? Entrepreneurship और mindset की बात की जा रही है. क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंड नहीं है ये है वही सोच जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि हमारी सोच पिछली सेंचुरी की है. और पिछली सेंचुरी में ये होता था कि नौकरी करो और मौज करो. बाकी सारी जो फिक्रें हैं ऑर्गेनाइजेशन की और हर चीज की, वो कोई है ही नहीं. जाके बस सुबह दफ्तर पहुंच गए, अपना काम किया और उसके बाद आगे. हमारी माशरे में जो एक सबसे जो मसला जो है ना, हम ये समझते हैं कि जॉब बेसिकली चिल होती है, चिल के लिए होता है. मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे दूंगा. मेरा एक हमारा जो माली था लाहौर में, तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा जो था वो आया करता था. कहते कि वो मैं उसको हमने महकमा हार जो है नहर का महकमा, उसके अंदर भर्ती करवा दिया. सर नौकरी बड़ी चंगी है, नौकरी बड़ी अच्छी है उसकी. सारा दिन बस वो जो उसका जो है, मैं क्या कहते वो भी माली है, बस वो सुबह जाके घंटा डेढ़ से काम करता है. उसके बाद उसने वहीं पे चारपाई रख ली हुई है, वहां पे मजे से 4-5 घंटे सोया रहता है. दोपहर को मैं उसको खाना ले जाता हूँ और फिर ये है कि वो बस उसके बाद भी खाना खा के भी थोड़ा सा सोता है, उठ के नमाजें पढ़ता है और घर आ जाता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. मैंने कंप्यूटर साइंस वालों को ये कहते हुए सुना कि जी सुबह जाके एक घंटा बस आधे घंटे में डेटा एंट्री कर देते हैं, उसके बाद एसी लगा हुआ है, फेसबुक है, व्हाट्सएप चल रहा है सारा दिन, बस आखिर में बॉस ने हमें थोड़ा सा काम देना है, आध पौन घंटे का, वो करके चिल है. हमारी नौकरी बड़ी जबरदस्त है. अगर हमारा माइंडसेट यही रहना है तो फिर हम वाकई नौकरी के पीछे भागेंगे. हम ये समझते हैं कि आराम करना शायद जिंदगी का सबसे बुनियादी काम है. दैट इज वाई. और ये अय्याशी सिर्फ और सिर्फ नौकरी के अंदर हो सकती है. लेकिन जो मजा इंडिपेंडेंट काम में है, अपने काम में है, सो ये वो वजह है कि लोग अपना काम नहीं करते और ये महसूस करते हैं कि नौकरी करें ताकि महीने के आखिर में लगी बंदी. ये वही पुराना ये 1910 1920s वाला माइंडसेट. राइट. लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑडियंस के, उसके बाद इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें. सर हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन इन टीनेजर्स इन टुडेज वर्ल्ड? डिप्रेशन जो है बेसिकली, डिप्रेशन का जो, मैं खुद इस चीज को पिछला कुछ अरसा 3-4 साल 5 साल हुए हैं, मैंने बड़ा इसको स्टडी करने की कोशिश की. बिकॉज मैंने बहुत से लोगों को, करीबी लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दिस डार्कनेस. लेकिन जो चीज मुझे अजीब लगी वो ये था कि दे आर इन लव विद दैट डिप्रेशन. दे लाइक टू स्टे एट दैट डार्क प्लेस. इट इज देयर कंफर्ट जोन. बिकॉज डिप्रेशन में फिर ये है कि आपके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. नहीं, आई एम डिप्रेस्ड, आई कांट डू दिस. आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप ड्रग्स वगैरह लेंगे, आपको वो कोई सुलाने की कोशिश करेंगे, वो आपको वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन देंगे. और डिप्रेशन एक बहुत खूबसूरत रिफ्यूज है. डिप्रेशन में मान लिया आप तो डिप्रेशन में चले गए हमें तो जो है वो चीजें, उसमें काफी सारी अलाउंसेस मिल जाते हैं, उसमें काफी सारी सहूलतें मिल जाती. दे वोंट लाइक इट. इस वक्त सुनने वाले काफी सारे लोग डिप्रेशन वाले ये चीज पसंद नहीं करेंगे. लेकिन मैंने देखा कि डिप्रेशन वाला बंदा बड़ा शौक से उसके अंदर रहता है. शौक के अलावा मुझे और कोई बात नजर नहीं आई कि बंदा उसके अंदर कैसे रह सकता है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट ऑफ माइंड. साइकोलॉजी वाले शायद कुछ और कहते हो, मैं इसके बारे में कोई आलमाना राय नहीं रख सकता. साइकियाट्रिस्ट जो है वो कुछ और कहते होंगे. लेकिन डिप्रेशन मैंने देखा है कि जो मसरूफ बंदा है उसके पास टाइम नहीं है डिप्रेशन का. ये सिर्फ फारिग लोगों का कमाल है. काफी दुश्मन वाली हो गए मैंने. राइट सर. सर इधर क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज क्रिटिकल एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, और ज्यादातर क्वेश्चन ये क्रिटिकल थिंकिंग की एप्लीकेशन कैसे है डेली लाइफ में, अंदर रूटीन लाइफ में कैसे की जा सकती है? हर वक्त कर रहे हैं आप क्रिटिकल थिंकिंग, तो कंपैरेटिव तो हर वक्त कर रहे हैं. सिर्फ ये कि हम कॉन्शियस नहीं है उसके. आपने क्रिटिकली सोचा कि भाई इस वक्त ये वाला काम जो है, मैंने वो फ्ला सीजन जो है मैं देख रही थी और मैंने इस वक्त वो देखना है या कि मैंने ये पॉडकास्ट देखनी है. आपने इसके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स जो थे उनके उसके ऊपर फिर आपने देखा कि भाई सीजन तो किसी भी वक्त मिल सकता है, ये वाला सिर्फ टाइम पे है. तो ये आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया. ये
इंसानी दिमाग हर वक्त कर रहा होता है, ऑल द टाइम हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कर रहे हैं। सिर्फ ये कि हमें एकेडमिकली नहीं करवाई गई, सो हमें उसको, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। अदरवाइज हर वक्त इंसान है ही क्रिटिकल थिंकर। इंसान की सर्वाइवल ही क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। इवन एनिमल्स आर क्रिटिकल थिंकर्स, दे क्रिटिकली जज सिचुएशंस एंड दैट इज व्हाई दे सर्वाइव। सो इंसान है ही क्रिटिकल, हमारी बेसिक थिंकिंग बेसिकली क्रिटिकल है। सिर्फ ये है कि हम, अगर क्रिटिकल थिंकिंग, सादा सी मिसाल यूं दूंगा कि अगर आपको कोई चैप्टर जो है टीचर ने समझा दिया है और वो कहे कि भाई अब खुद देखो मैंने अनसीन क्वेश्चन देने हैं, तो यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट। आप सोचना शुरू कर देंगे इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो क्वेश्चनेबल हैं या एग्जामिनेबल हैं, तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग बाय इटसेल्फ। लेकिन अगर हर चीज पहले से रेडीमेड करके दे दी जाएगी तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस काम में, बट ये ना समझिए कि आप डेली लाइफ में क्रिटिकल थिंकर नहीं है, उसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। This is one a question है, this will be the last question from the audience. क्या evaluation जरूरी है CSS के लिए, या हमें खुद पता होना चाहिए कि ये चीज सही है या गलत? नहीं, खुद कोई तरीका नहीं जज करने का। इवेल्युएशन के बगैर जो है, जब तक सेकंड पर्सपेक्टिव नहीं उसके ऊपर देखा नहीं जाएगा, कोई भी चीज देखिए, आप चीज को 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट खुद जो जब देख रहा है तो उसको 2 डायमेंशन में देख रहा है। वो जो Z डायमेंशन है, आप X और Y एक्सिस पे देख रहे हैं, वो जो Z है, वो Z डायमेंशन जो है वो सिर्फ कोई तीसरा बंदा दे सकता है। आप खुद उस डायमेंशन के अंदर होते हुए देख ही नहीं सकते। थर्ड डायमेंशन सिर्फ उस वक्त नजर आती है जब आप अपने आप से बाहर निकलेंगे, एंड दैट कुड ओनली बी द थर्ड पर्सन और द सेकंड पर्सन। राइट सर, कमिंग बैक टुवर्ड्स टॉपिक जो था कि स्टूडेंट्स के और टीचर्स के क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, सर उस वाले से मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग हाउ कैन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग बर्नआउट और इम्प्रूविंग टीचर रिटेंशन रेट्स एंड अल्टीमेटली इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। सर कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज या कोई एग्जांपल्स हम लोग की है बेस्ट जिसको हम कॉपी कर सकते हैं? नहीं, और मेंटरशिप एज सच देखिए ना, है नहीं ना, काउंसलिंग एज सच है नहीं। मैंने आपको जैसे डॉक्टर बिलाल की मिसाल दी है कि ये काउंसलिंग थी ना एक तरह से, कि उसको उसके माइंडसेट के मुताबिक जो है, अब हम जब बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट के साथ तो हमें समझ आ रही होती है। मसलन साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमारे यहाँ जो आजकल चल रही है ट्रेनिंग के अंदर, वो इतनी जबरदस्त एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स उसको यूज ही नहीं कर रहे। और वो जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, उसके जरिए इंसान का एक सामने आ जाता है कि आपके मेंटल ट्रेंड्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। इसलिए नहीं कर रहे कि आपको क्रिटिसाइज करना है या आपको ये बताना है कि लो भाई तुम्हारी ये कमजोरियां हैं, नहीं, सो दैट आप उन एरियाज में जा सकें जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। मसलन मुझे अगर कहा जाए कि जी आपने किसी ऐसी जॉब पे चले जाना है, ऐसी सर्विस में चले जाना है जहां पे यू विल बी टोल्ड टाइम एंड अगेन व्हाट टू डू एंड यू विल हैव नो पर्सनल फ्रीडम एट ऑल, तो मुझे जाती तौर पे मेरा एनालिसिस, मैंने बहुत अरसा पहले ये चीज कर ली हुई है कि माई फ्रीडम इज प्रोबेबली द मोस्ट इज द डियरेस्ट टू मी। और जहां पे मुझे ये महसूस होना शुरू होता है कि माई क्रिएटिविटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज नाउ, अब ये मैंने अपना एनालिसिस कर लिया हुआ ना, या मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया कि यू आर अ क्रिएटिव टीचर बेसिकली, तो फिर मुझसे जो रेजिमेंटेड जो एनवायरमेंट्स होते हैं उसके अंदर काम नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ काउंसलिंग ही सिर्फ दूसरा जो है वो एनालिसिस करके जो है वो बता सकते हैं आपको। आई विश कि द सूनर वी कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक काम जरा देना चाहूंगा कि हमारे मुआशरे में बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा जो है उनके पास जो नॉलेज जो मौजूद है, प्लीज आगे आए और आप इसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस की सर्विस, अब आप वैसे जो फारिग बैठे हुए हैं तो इसकी कोई ना कोई, चाहे इंस्टाग्राम पे या किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों को दें, यूट्यूब के किसी वीडियो के जरिए, और लोगों को इनवाइट करें कि भाई आप अपना, मैं आपको एक परफॉर्मा देता हूं या देती हूं और उस परफॉर्मा को फिल करके जरा मुझे भेजे ताकि मैं आपकी पर्सनैलिटी की टाइप को जज कर सकूं। तो ये सर्विस प्लीज, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस सोसाइटी के अंदर। तो ये लोगों तक पहुंचाएं इस एनालिसिस को जो अल्लाह ताला ने आपको जो नॉलेज दिया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग साइकोलॉजी पढ़ के सिर्फ और सिर्फ वो महसूस करते हैं कि पढ़ाई ही थी सिर्फ, हालांकि ये एक बहुत काम की स्किल जो है। नॉट ओनली, मैं ये
नहीं कहूंगा कि सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नहीं, ये सारे लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी पब्लिक की और स्टूडेंट्स की। इनको इस चीज की इस वक्त जरूरत है। दे डू नॉट नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस, जिसकी सर अपॉर्चुनिटी yes sir. The level of trust and respect between the teachers and students over the past few years decline पे है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि it has been declining? जिस तरह पहले एक नोशन है, जिस तरह अगर हम देखा जाए कि पुराने जमाने में जो टीचर्स और जिस तरह वालिदैन थे, वो जब टीचर्स के पास जाते थे कहते थे कि खाल हमारी और चमड़ा आपका, तो एक वो भी था कि हम टीचर्स मारते भी थे, स्टिल द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और इज्जत का था। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को इंक्रीज होना चाहिए था, पर इट हैज बीन डिक्लाइनिंग। इट इज क्वाइट नेचुरल, राइट, इट इज क्वाइट नेचुरल। उसकी वजह यह है कि टीचर्स जो हैं, जब वो आएंगे विदाउट मेरिट, तो फिर रिस्पेक्ट किस चीज की? विदाउट मेरिट जो बंदा आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट किस चीज की है? जो डिजर्व ही नहीं था करता उस पोस्ट के ऊपर होना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके पास कोई ना कोई सोर्स था, तो वो लोग आगे और मेरिट वाले लोग बाहर रह गए, तो फिर उसमें रिस्पेक्ट कहां से आएगी? फिर ये तो नेचुरल है। राइट सर, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन योर जर्नी, आप कोई अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आप या इनसाइट बता सकते हैं? हर प्रोफेशन के अंदर सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, कि आपकी थ्रू आउट योर करियर आपके अंदर आपके करियर में चैलेंजिंग मोमेंट्स कब आए इन योर पर्सनल लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रोफेशन? कोई अप्स एंड डाउन्स जो आपने फेस किए हो? A lot of जी। I, for example, keep on changing organizations because when I start feeling that I am no longer creative, or maybe I have become too much used to this timetable and there are too many restrictions on me. होता बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे की वैसी रहती है। मसला क्या होता है कि मेरी ग्रोथ का है। आई ग्रो आउट ऑफ दैट जॉब, सो दैट इज यूजुअली द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, जब लोग कहते हैं कि अब तो आप कंफर्टेबल है इस जॉब में, और मैं कहता हूं कि यार, जहां मैं कंफर्टेबल हो गया वहां मेरी ग्रोथ रुक गई। ये सारी जिंदगी मेरा रहा है कि जहां पे मैं रुक गया, वहां जहां मेरे कदमों के नीचे घास उग गई, दैट मीन्स कि अब मैं रुक गया। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्ट बिकमिंग रेस्टलेस, एंड दैट इज जो मेरे आसपास के लोगों को, मेरी फैमिली को समझ नहीं आती that why is he moving on now that he is just, अब तो आप सेटल हुए हैं, अब आप अपनी पीक पे हैं और अब आप मूव ऑन करके किसी और चीज में जाना चाह रहे हैं। नहीं, एक पर्सनालिटी टाइप ऐसी है कि मैं मैसेज भी देना चाहता था स्टूडेंट्स को कि आई ऑलवेज ट्राई टू ओवर रीच माई सेल्फ। मेरी जो ग्रास्प है, मेरी हमेशा उससे ऊपर कहीं। एट the age of 63, a person cannot think of moving into a third, maybe a PhD. लेकिन अब चूंकि मेरी इंटरेस्ट बनी हुई है सुपर इंटेलिजेंस में, मैं महसूस कर रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी जो चीज नहीं होगी, जो हम ह्यूमंस की अब नई चीज जो हम डेवलप कर चुके हैं, दैट इज सुपर इंटेलिजेंस। नाउ आई वांट टू स्टडी इन दिस फील्ड। अब इस वक्त अगर मैं चैलेंजेस देखूं हेल्थ के और अर्निंग के और ये सारा कुछ, तो अब एक चैलेंज बना दिया है अपने लिए कि नहीं जी, आपने ये सारा कुछ करते हुए, सो ऑल द टाइम आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू डिफिकल्टीज। दैट इज व्हाई आई ग्रो। जहां पे आप कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे, अगर आपका लाइफ में कोशिश है, ख्वाहिश है कंफर्टेबल होने की, दिस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। जॉब शायद आपको बड़ी अच्छी लगे, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर फिर प्रमोशन वगैरह नहीं हो। आई होप पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। सर, देयर इज अ मैसेज फ्रॉम समवन, किन्स 19 के नाम से इनका आईडी है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर आरिफ एज माय मेंटोर। इट इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग टू लिसन टू हिम. It isn't words that he utters, but prayer for us all. Plus, there is none like him in Pakistan. सर, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस थे जो कि पहले भी आ रहे थे, जिसके अंदर आपको अप्रिशिएट कर रहा था, थैंक किया वो नहीं जाता पढ़ने anyhow, I know that's why people right. Sir, I honestly work very hard with my students, और कोशिश यही होती है। अब मैं एक ऐसी स्टेज पे लाइफ के पहुंच गया हूँ, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब से, जहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, कि अब ये टाइम है कंट्रीब्यूट करने का, कि हम इनको दे क्या सकते हैं। बिकॉज आई विश देयर वर मोर पीपल विद द सेम आइडियोलॉजी एंड द सेम पैशन फॉर
giving people rather than taking from them. I wish there were more. यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा बेटा, एक मैं आपकी शायद नॉलेज में नहीं है कि मैं सिर्फ ये नहीं कि एक एकेडमी के साथ सिर्फ एक क्लासेस को सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। मेरी बेशुमार और भी एफर्ट्स हैं जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए हैं, जैसे ऐसे डिस्कशन फोरम है जिसके अंदर हजारों स्टूडेंट्स हैं जो मैं टॉपिक देता हूं, जिसके ऊपर वो आउटलाइंस लिखते हैं और आपस में लर्निंग करते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा टाइम दे के एक रिसर्चर्स जो ग्रुप एक बना हुआ है, वो स्टूडेंट्स मेरी तरह ही दे शेयर द क्रेज विद मी ऐसे डिस्कशन फोरम की। और उन्होंने खास तौर पे कहा था कि हमारा जिक्र जरूर कीजिएगा ईडीएफ प्रेजेंटर्स, ऐसे डिस्कशन फोरम के जो प्रेजेंटर्स हैं, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनसे आगे हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं इनकी रिसर्च से। हम हफ्ते में एक टॉपिक लेते हैं, 1 2 3 हफ्ते के बाद में टॉपिक इनको दे दिया होता है, उसके ऊपर ये आउटलाइन करते हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, और उसके बाद हम जूम मीटिंग संडे मॉर्निंग करके तो उसका वीडियो फिर हम मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं। दैट इज सच ए यूजफुल थिंग। और मैं महसूस करता हूँ कि ये लोग भी, इनके अंदर भी वही स्पिरिट मेरे वाली आस्ता आस्ता पैदा होती जा रही है। 1 2 रिसर्चर्स बहुत ज्यादा डेटा जो था वो रिसर्च किया करते थे, और उनको फिर मैंने पूरा ग्रुप बना के दिया है, ऐसे डेटा ग्रुप बाय दानिश एंड बुखारी, और शाहजेब भी उसके अंदर शामिल है। ये ऐसे लोग हैं कि ये कहते हैं कि सर ये हमने कोई चीज, ये बहुत थोड़े लोगों में होता है शेयरिंग का जज्बा, जो मेरे अंदर है कि मेरे पास कोई चीज है तो मैं शेयर करूं लोगों के साथ और फ्री में। यही इन बच्चों के अंदर मुझे अब मेरे आसपास जो है वो काफी सारे माइंड्स मैंने इंस्पायर किए हैं कि इनके अंदर भी लोगों के साथ शेयर करने का, और बिल्कुल फ्री में सारा सारा दिन बैठ के रिसर्च करेंगे और व्हाट्सएप के अंदर वो डाल देंगे। लोग उनका नाम तक नहीं जानते, कुछ नहीं, कोई अप्रिसिएशन उनको नहीं मिलती, लेकिन उनको ये तसल्ली है कि हमारी वजह से हजारों लोगों को ऐसे का डेटा और सीएसएस का डेटा जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह से काफी सारी एफर्ट्स ऐसी मैंने की हुई हैं। क्रिटिकल थिंकर्स के ग्रुप्स हैं, क्रिटिकल थिंकर फोरम्स हैं, मीटिंग्स करते हैं, कि जो लोगों के फायदा उठाने की चीजें हैं। मुझे उसमें से क्या मिलता है? ओनली एंड ओनली सेटिस्फैक्शन, नो फाइनेंशियल गेन्स बिकॉज ऑफ दैट। ये स्पिरिट है जो हमारे टीचर्स के अंदर चाहिए थी कि खुदा के वास्ते कभी तो कुछ ऐसा काम कर लें जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। पैसा मिलता है, पैसा अल्लाह ताला ने जब वादा किया हुआ तो वो देता है, लेकिन एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम कम्युनिटी की सर्विस जो है, ये भी जज्बा हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है अल्टीमेटली लाइफ में ये रोल प्ले करने का। सर, जिस तरह से टीचिंग आपका पैशन है और आपने डिस्कवर किया ये चीज, एक स्टूडेंट को, एक शख्स को किस तरह से पता लगेगा कि ही कुड बी अ गुड टीचर? फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है। सेकेंडली कि थ्रू आउट आपके सबसे मेंटली चैलेंजिंग टाइम कब था आपका लाइफ के अंदर, आपकी टीचिंग करियर के दौरान? ये 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल आपका है कि कब लोगों को पता चलता है कि वो टीचिंग कर सकते हैं? ही इज अ कैपेबल टीचर। जी, ये एक अपने अंदर एक अर्ज महसूस होती है। जो जिन्होंने टीचिंग करनी होती है ना, वो खाम इधर उधर से बच्चों को पकड़ के जबरदस्ती जो है वो उनको कुछ ना कुछ वो उनको हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं। टीचर्स इसी तरह अपने आप को डिस्कवर करते हैं कि वो महसूस करते हैं कि कोई किसी को समझ नहीं आ रही, घर में, मोहल्ले में, किसी में, आसपास लोगों में, रिलेटिव्स में किसी को कोई चीज की समझ, मैं इसको समझा सकता हूँ, ये सकती हूँ। एंड दैट इज व्हेन दे डिस्कवर ग्रेजुअली दैट दे कैन बिकम टीचर्स, और वहां से फिर जर्नी जो है उनका स्टार्ट होता है। सेकेंडली जो जहां तक चैलेंजिंग है अहमद, इसमें बेटा कोई ऐसी नहीं है कहा जाए कि कोई चंद एक challenges थे। There have been many challenges. Teaching is not a very paying profession. और ये वो चैलेंज था जो फैमिली लेवल पे मुझे हमेशा मैं फेस करता रहा कि लोग तो पढ़ लिख के और कोई काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। आपको पता भी है कि टीचिंग के अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं है, देन व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन? और ये फिर बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है इसको सर्वाइव करना, इस क्रिटिसिज्म को। बट आई हैव बीन फेसिंग दिस एंड आई हैव बीन सर्वाइविंग दिस एंड स्टिल आई हैव स्टक टू टीचिंग। कि ठीक है, लो इनकम है तो ठीक है, ओके, दैट्स हाउ इट इज। आई कैन नॉट ओन अ मर्सिडीज इन पाकिस्तान, बट देन एटलीस्ट आई हैव सम 4 व्हील्स अंडर मी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है। सर, द लव सर, वो एक कुछ चीज ऐसी है कि इट्स मोर देन एक ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, लेकिन जी शुरू में वाले साहब के बाद ना उन्होंने एक चीज जो हमेशा से, दो मैं
इन्फ्लुएंसेस का जिक्र करना चाहूंगा और दोनों जो है वो विमेन के हैं। एक इन्फ्लुएंस मेरी वालिदा का है कि वालिद साहब के बाद उसके बाद चूंकि उन्होंने ट्रेनिंग करनी थी, उन्होंने हमेशा मुझे ये समझाया, सारे बच्चों को ये समझाया कि बेटा जब तक तो अपने से नीचे वाले को देखते रहोगे तो खुश रहोगे और तुम्हें महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें और कंटेंट रहोगे और सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन जो ही तुमने ये देखना शुरू कर दिया, मसलन मैं अगर साइकिल पे हूं तो मैं महसूस करता हूँ मैं बेहतर हूं क्या, मतलब उसमें पैदल नहीं चल रहा। मैं अगर मोटरसाइकिल पे हूं तो फिर भी मैं साइकिल वालों को देखा करता था कि कम से कम मुझे साइकिलें नहीं चलानी पड़ रही। जब गाड़ी में आए तो फिर आप मोटरसाइकिल वालों को देखते हैं तो हमेशा दिल से ये दुआ निकलती है कि या अल्लाह इनको भी गाड़ी दें कि इनके लिए भी जो है। अब मैं अगर इस तरफ देखना शुरू कर दूं ना कि यार मेरे पास ये वाली गाड़ी है और मेरे पास वो नहीं है, और वो देखता है कि मेरे पास ये वाली है तो मेरे पास जहाज क्यों नहीं है, और जहाज वाला कहता है कि मेरे पास याट क्यों नहीं है, तो फिर वो सेटिस्फेक्शन, ये मेरी वालदा की। तो ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज पहुंचाया करता हूँ कि जब तक नीचे वालों को देखते रहेंगे। दूसरा सबक मेरी वाइफ ने, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, I have suffered the loss of my wife about 7 months ago. She passed away because of breast cancer. और इनका जो एक हमेशा मेरी तरफ होता था, वो हमेशा हमेशा ये होता था कि जो बंदा आस करके आपकी तरफ आया ना, उसे मायूस ना करो। इसके साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मेरी डेवलप हो गई है कि आई कैन नॉट से नो टू एनीबॉडी। रोजाना बेशुमार मैसेजेस, ये चेक कर दें, ये चेक कर दें, ये चेक कर दें। मैंने नाम भी नहीं पूछा, वो मुझे नहीं पता मेरा स्टूडेंट है, कोई अननोन बंदा बलोचिस्तान से भेज रहा है, कोई सिंध से भेज रहा है, आई डोंट नो हु दे आर। लेकिन जो ही मुझे 2-3 मिनट मिलेंगे चाहे लेटने से पहले, मैं उसको चेक करके उसको जरूर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको आस करके मेरी तरफ भेजा है। फिर ये शायद मेरी इबादत है, ये शायद मेरी खिदमत का एक, और ये वो चीजें हैं जो मैं डेली बेसिस पे, कोई भी शख्स मेरे आसपास आता है वो कहते हैं आप इन चीजों को बड़ा टाइम लगा रहे हैं, इनसे आपको क्या मिलता है। हर चीज मिलने के लिए शायद नहीं होती, अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो बहरहाल आई डोंट लाइक टू टॉक माई सेल्फ अबाउट माई सेल्फ टू मच, लेकिन बहुत ज्यादा आपने मुझे पर्सनली एक्सपोज कर दी है। हाँ नहीं सर। सर ऑडियंस के अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नहीं लिया गया। अब हमारे अब जो है 9:45 बज रहे हैं और मेरी बत्तियां पिछले 1 घंटे से बंद हो गई हुई हैं और मैं जबरदस्ती यूपीएस पे चल रहा हूँ। सर बस लास्ट में ये कि आप अपने व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई स्पेशल मैसेज जो अपने स्टूडेंट्स को आप देना चाहें? बड़ा सादा सा है, मेरा सिर्फ 2 वर्ड्स का मैसेज होता है हमेशा, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको 2 आंखें दी हैं, कान दिए हैं और साउंड ब्रेन दिया है जिसके साथ आप इस बात को सुन सकें। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास इन तीनों में से कोई सी एक चीज नहीं है। नेवर अंडर एस्टिमेट, डोंट थिंक कि दूसरे लोग जो आपके बारे में सोचते हैं वो दुरुस्त है। ओनली यू योरसेल्फ कैन जज योरसेल्फ। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड क्योंकि विदाउट रिस्पेक्ट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। और अगर हम मुसलसल यही समझते रहेंगे कि मैं इससे कमतर हूं, इससे कमतर हूं, nobody can help you make you inferior unless you allow the other person to make you feel inferior. Without your consent, nobody else can make you feel inferior. So respect yourself. You are very special. अल्लाह ताला ने आपको बहुत सलाहियतें दी हैं, प्लीज उनको पहचानें और उनका कफारा, उनका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला के सामने। सर इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड एनॉन एसोसिएशन जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। थोड़ा सा मैं एनॉन एसोसिएशन का जिक्र करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया एनॉन एसोसिएशन का। डेफिनेटली मैं डॉक्टर हाजरा, मेरी जो स्टूडेंट हैं, जो सीईओ हैं इसकी एनॉन एसोसिएशन का, आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक हर एंड आई एम वेरी ग्लैड टुडे कि ये हमारी बड़ी एक खामोश सी स्टूडेंट एक होती थी और इसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतना जबरदस्त जो काम जो है वो कर दिया हुआ है और बड़ी खामोशी से कर लिया है। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर हाजरा and especially Dr. Ahmed, you are doing very good work yourself and I'm very glad आपकी एक marketing side से खांसा जो थी वो मेरे साथ पिछले दिनों डील कर रही थी leading up to this. I'm really glad to meet all of you and I'm thankful to you for the very positive approach that all of you have towards your work. I wish you success, much success in life, inshallah. Thank you so much, sir. It was a pleasure having you on board, sir. It was a great conversation. Thank you. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.